my information. And chemistry is a subject which is opted by hardly 100 students in the mains. And out of 100, if 14 students are qualifying, this is a subject with a great success rate. And when 14 people, who 14 result we have displayed this year, that means number of people who have taken the interview are about 30, because 2.2. Typical selection ratio is 2.2. 1 person out of 2.2 people taking the interview gets selected. So 30 students have taken the UPSC personality test or interview. So you see, success rate is what? 30 people qualifying out of 100. So it is a subject with a 30% success rate. So if anyone of you have got any dilemmas or doubts about opting for science subject like chemistry, my answer is chemistry is the best optional. Not every Tom, Dick and Harry can dare to opt for chemistry. Chemistry can be opted for by only those persons who have got background in chemistry. Any humanities subject can be opted by anyone, but chemistry cannot be opted by anyone. Chemistry can be opted either you are BSc in chemistry or MSc in chemistry or engineering degree holder, means you have to have a good background of chemistry up to 12th class minimum. And typically favored subject is for BSc and MSc background. If you are BSc, then almost 80% syllabus you have already done. If you have done your masters, then you are thorough with almost 100% of the syllabus, but only you need to know how the answer has to be presented and process of making everything succinct to the point, because this 4-year course has to be done in 4 months, and then you have to compress that 4 months in 4 hours, because you normally get 4 to 5 hours before taking the mains exam. 1 day before is the GS paper, last paper, and then next day you have to appear for the exam. 6 o'clock you will come up to home, 10 o'clock you will go to bed, next day 6 o'clock, 7 o'clock you will go for the center. So hardly you have got 5-6 hours for revision in the real exam. So entire course has to be managed within that time. We are the only institute who are offering IAS classes for chemistry. That is also one of the things. There is no deviation. If you want to do a class, you have to come to us, and everything is okay. Whatever is required from examination point of view, we provide. So any question you want to ask? From where you have come from? What is your backgrounds? MSc chemistry. From? Okay, one more thing here you keep on telling. For chemistry, good background of mathematics is essential. Let me tell you that. I have also studied chemistry. So chemistry requires, and 60% of the syllabus I have got mastery. I never teach any topic in chemistry, but physical chemistry I know A to Z. Whatever is there in physical chemistry, because physical chemistry is nothing but extension of physics. And paper 2 is spectroscopy. Also I am, if any doubt is there, I am there to clear that doubt also, because I am also expert of the spectroscopy. I teach the same books, whatever chemistry people learn. So in that sense I can tell you, chemistry is the best optional only when your background is good. Good background means either engineering graduate. Engineering graduate means you are well familiar with integration and differentiation. Because in physical chemistry, paper 1 is 70% physical chemistry, 30% is rest, 70% is physical. And physical chemistry requires integration up to the gamma function. Like if I have to get the expectation value of radius in the hydrogen atom, r is square r 1 by r, then you require gamma function integration, 0 to infinity e raised to power minus x, x raised to power n. So if your background of mathematics is not good, then this is going to be little difficult. You have to work out on the basics of maths, integration, only integration and differentiation, nothing more than that. We don't require vector calculus or something, but integration and differentiation you must know. Dr. R.K. Singh told me that these days even in universities, in master's level, if you are doing the masters in chemistry, then they have got a special paper on mathematics. So if you have got everybody coming from at least working knowledge of integration and differentiation you have got, then only this is a good subject. That is the only prerequisite. Everything else can be learnt and taught. Okay, so where have you done your MSc from? From Maharashtra. Marvish College, Mumbai University, Kalina. Yes. Okay, good. And BSc?
Same, the physics, chemistry, maths. No, BSc with what? Botany, zoo and chemistry. Then have you studied this integration differentiation? So you have to just practice that thing. Before that, take the help of someone and learn integration and differentiation, because first chapter you may not realize, because atomic structure is simple. But as you will move over to the thermodynamics and chemical kinetics and your this quantum chemistry, then your background of integration and differentiation will be required, and without that you will not be able to do that. So that you will be the same thing people from UP universities face. Yes. Sir, Suraj Kumar Yadav. हाँ. I have done my BTech in chemical engineering from ठीक. IIT. हाँ, good, best, no problem, very good. BTech means BTech from anywhere. That means you are having good background of mathematics. That is prerequisite. Only integration and differentiation you are familiar. So chemistry is a good option for you. Sir, Pinky Kumari graduated in BSc Chemistry Honours from Delhi University. Delhi University you have been taught physical chemistry, right? Yes, sir. So integration differences are not a math problem. Yes. Class 12. Because they are like Maharashtra University and UP University, they have got some problem. They do not teach. They have not taken the elective, because most of the universities these days offer elective courses on the mathematics part. You? अंजलि मास्टर्स मास्टर्स किया है कहाँ से? पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से। अच्छा, तो मास्टर बीएससी किस में किया था? जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। हाँ, अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया था। उसके बाद एमएससी जो कर लिया, फिर बढ़िया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर बीएससी किया है तो बहुत बढ़िया है, देन केमिस्ट्री इज गुड, कोई फाइट नहीं। BSc from physical science, BSc physical science from DU and MSc chemistry from DU education. अच्छा, बीएससी फिजिकल साइंस तो मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड तो है ही है ना, ठीक है आपके लिए। Sir, also I am done BTech in civil engineering. The board. कहाँ से? Sir, UP. अच्छा, यूपी से। बीटेक किस सिविल, मतलब तो ये तो सब पढ़ा ही हुआ है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो इंजीनियरिंग वाले को आता है, इंजीनियर वाले के लिए बहुत अच्छा है। पुलकित गर्ग थे हमारे स्टूडेंट थे, IIT से सिविल इंजीनियरिंग करा था, 32 रैंक लाए थे, वे यूपी कैडर में IAS हैं पुलकित गर्ग। हाँ, BSc केमिस्ट्री महाराष्ट्र। नहीं, BSc केमिस्ट्री के साथ क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री मैथ्स ना, ठीक, मैथ्स है ना। बस माई ओनली इंटेंशन इज कि मैथ्स है क्या, और मैथ्स नहीं है तो आपको थोड़ा मैथ्स का पहला चैप्टर जो है ना पूरी शर्मा पठानिया का, पूरी शर्मा पठानिया के पहले चैप्टर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो इतना सरल है नहीं जितना लगता है कि अब तुमको 12वीं क्लास वाली सारी मैथ्स करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर रट के काम नहीं चल सकता है। रट के MSc का एग्जाम पास हो जाता है, BSc का एग्जाम पास हो जाता है, लेकिन IAS के एग्जाम के लिए आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वो R² नहीं 1/r नहीं पूछेगा, कहेगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन दे रखा है मैंने आपको, R की निकालो, कभी कह देगा R² की निकालो, कभी कह देगा 1/r की निकालोगे, तो आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं आता तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको तो कोई सिर्फ अभी थोड़ी वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ, मेंस आंसर राइटिंग तभी सर आ रहे हैं। मेंस आंसर राइटिंग का क्लास तो मेरी समझ में अभी हो चुका है, खत्म हो गया, ये तो नॉर्मल बैच चालू होने वाला है अभी। एक क्लास के लिए मेंस आंसर राइटिंग का क्लास, टेस्ट सीरीज चलेगी। टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हो, टेस्ट सीरीज डिफरेंट प्रोग्राम है एकदम। हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो सेमिनार है, सेमिनार सुनने में टॉपर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा तो हाँ, तो अभी आ रहे हैं, वो आगे बैठा हुआ है, आयुष सैनी आया हुआ है, अभी दूसरा वाला आ रहा है, दूसरा वाला रास्ते में है जो 84-88 रैंक आई है, उत्कर्ष पाठक जो है, उसी का वेट कर रहे हैं बैठ के, जैसे वो आएगा वैसे शुरू कर देंगे। बात तो पहले मुझे करनी होती है ना, सबसे पहले तो मास्टर तो मैं ही हूँ, कोई अल्टीमेट कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास ही आएगा सोल्यूशन, समझ रहे हैं। और तुमको मैंने एक्सपर्टीज़ तो बता दी कि कुछ भी पूछ लो मुझसे तुम, जब किसी टीचर फीचर को भी डाउट होगा तो मुझसे ही पूछेगा वो। थर्मोडायनामिक्स का एक्सपर्ट मैं हूँ, क्वांटम केमिस्ट्री का एक्सपर्ट मैं हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स का एक्सपर्ट हूँ, तो क्वांटम केमिस्ट्री की क्या बात है, क्वांटम मैकेनिक्स का ही तो एप्लीकेशन है। आपका परिचय? अरे ढंग से बोलो यार, तो इतना IAS बनने के लिए आए हो तो आंखों में IAS जैसे करिश्मा भी तो होना चाहिए ना, बताओ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ना, कोई बैकग्राउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिजिकल किया हुआ है सारा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब किया हुआ है ना। आपका? अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सो गुड, BSc बैकग्राउंड इज गुड। आपका? अच्छा, तो सब 3-4 तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही हैं यहाँ पर,
ड्यू का सर भी ड्यू के ही है। सर जो है किरोड़ीमल कॉलेज से बीएससी हैं, किरोड़ीमल कॉलेज से एमएससी हैं, आईआईटी दिल्ली से एमटेक हैं। हाँ अच्छा, किरोड़ीमल कॉलेज के तो केमिकल सोसाइटी के पैट्रन वैट्रन भी अब चंदा भी देते हैं हर बार। हाँ प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, वो भी रहे हुए हैं। तुम हो? हाँ वो रहे हुए हैं, वो तो मुझे मालूम है। अच्छा तुम भी रहे हुए हो, तो कितना अच्छा है, बहुत ही खुशी का। अभी आएंगे, अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी हैं और खुद आईएएस का एग्ज़ाम दिए हुए हैं। आईआईटी दिल्ली से एमटेक हैं, पीएचडी हैं आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग में। ये उनका बैकग्राउंड है। 2 बार आईएएस का एग्ज़ाम दे के 2001 या 2003 में फ्री हो गए थे। 2007 से हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, 2007 से नॉन स्टॉप। ही हैज़ बीन टीचिंग विद डायस ओनली। सो कम से कम 200 सिलेक्शन तो होगा ही होगा, कम से कम बता रहा हूँ आपको मैं, नॉट लेस देन दैट, विद द केमिस्ट्री ऑप्शनल। सो आपको जितने भी अभी केमिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड, केमिस्ट्री एज एन ऑर्गेनाइज्ड क्लास सिर्फ हम लोग ही रन करते हैं और कोई कहीं भारत में रन ही नहीं होता है केमिस्ट्री की क्लास। हर बार पूरा बैच चलता है, साल में 2-3 बार बैच चलते हैं। ऑनलाइन भी चलता है, ये बैच ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा, ठीक है। तो डायस सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही नहीं कराता है, और भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी और हिस्ट्री भी कराता है। 2 ऑप्शनल वो भी हैं, लेकिन बहुत फेमस नहीं है। जीएस भी कराते हैं हम लोग। हमारे जो गुवाहाटी और लखनऊ सेंटर में तो सिर्फ जीएस ही चलता है, यहाँ पर ऑप्शनल चलते हैं, जीएस भी चलता है। जीएस का हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी कराते हैं, जो साइंस ऑप्शनल के स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। मतलब आपको क्लास अगर ना करना हो तो आप हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जो बाहर डिस्प्ले हो रखा है, उससे इस बार का प्रीलिम्स का पेपर आप देखोगे कि 70 क्वेश्चन 100 में 70 क्वेश्चन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से आए हुए हैं। क्योंकि वो कुछ नहीं है, एनसीईआरटी किताब की बुक्स और जो तमिलनाडु स्टेट बोर्ड और जो वेस्ट बंगाल बोर्ड वगैरह है, उनके नोट्स को कंपाइल करके इकट्ठा करके एक जगह लिखा हुआ है। मेरी डायरेक्शन में सारा लिखा गया है। सो यू कैन अवेल दैट कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स आल्सो इफ़ यू आर नॉट डूइंग जीएस प्रोग्राम एनीवेयर एल्स। और मॉड्यूलर कोर्सेज भी हम लोग ऑफर करते हैं जीएस में, जैसे इकोनॉमिक्स का मॉड्यूलर हो या किसी और चीज़ का मॉड्यूल हो। इकोनॉमिक्स करना चाहो, ज्योग्राफी करना चाहो, करंट अफेयर्स करना चाहो, सो दैट काइंड ऑफ मॉड्यूलर कोर्सेज आर आल्सो रन। दे आर इन पैरेलल टू योर केमिस्ट्री प्रोग्राम ओनली। जैसे आपका केमिस्ट्री की क्लास अभी 11 से 1 है, तो जीएस का प्रोग्राम हमारा सवेरे चलता है 8:30 से 10:30 इस टाइम में, ठीक है। तो कुछ और पूछना है किसी को? ये वाला मेंस लिखना तो आप टेस्ट सीरीज में एडमिशन लो, क्लासरूम से तो कोई मदद होगी नहीं मेरी समझ में। दोनों आपको हाइब्रिड मोड में अलाउ कर देंगे, लेकिन कोई बहुत कोचिंग करने से कोई इस समय इज वेस्टेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू मी। बुलाओ, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू मी। यू कैन नॉट कंप्लीट द कोर्स बाय कोचिंग। फोकस ऑन सेल्फ स्टडी and take the test series. If this year, if your intention is civil service examination मेंस this year, क्योंकि मेंस तो इस बार सितंबर में ही है, तो आप हाँ लास्ट अगस्त वही सितंबर। आप ऑप्शनल का पेपर सितंबर के फर्स्ट वीक में जाएगा। तो हाँ आइए, वेलकम। हाँ यस भाई प्लीज़ आओ। वेलकम टू उत्कर्ष पाठक। आइए उत्कर्ष जी, भैया ताली वाली बजा के स्वागत करो यार ऐसे। और मैं बुके दे देता हूँ, फोटो खींचो। मेरे से परिचय है? यस सर, मेरे फोन से बात हुई थी। यस सर, फोन। इनके बारे में खास बात क्या है कि मैं यूपी के एक ज़िले से आता हूँ, उसका नाम है बलरामपुर श्रावस्ती। तो ये मेरे श्रावस्ती जिले के रहने वाले हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं डॉक्टर आर के सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि ये आयुष सैनी जी को इधर से जाओ, उधर से दो, बाहर से दो। हाँ अब आप लोग बैठो, तीनों लोग बैठ जाओ। तीनों लोग बैठे हैं। हाँ तीनों बैठ जाओ, मैं जमा जाऊंगा पहले। हाँ मैं कॉर्नर में बैठूंगा, मैं तो निकलूंगा। हम इधर, हाँ आप लोगों को बोलना। ठीक है, आप लोग बैठो, आप लोग बैठो, ठीक है। एग्जाम का इंट्रोडक्शन मैंने सारा बता दिया है, मोर और लेस। अच्छा ये सबको मालूम है एग्जाम कितने मार्क्स का है? कितने मार्क्स का है? अरे 500 का तो केमिस्ट्री ऑप्शनल है, 1750 का है।
1750 में फर्स्ट रैंक कितने मार्क्स पे आती है? रिटर्न की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, पहले रिटर्न की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इंटरव्यू के साथ। ये डेटा सबको याद होना चाहिए, जिस फर्स्ट टाइमर्स जितने भी हैं फर्स्ट टाइमर्स, उनको ये डेटा याद होना चाहिए। क्या क्या ये याद होना चाहिए बता रहा हूँ। फर्स्ट रैंक कितने में आती है, 10th रैंक कितने में आती है, 20 रैंक कितने में आती है, 30 रैंक कितने में आती है, 50 रैंक, फिर 50 कितने में आती है, 100 कितने में आती है, 200 कितने में आती है, 300 कितने में आती है। मोटे तौर पर ये ध्यान होना चाहिए, ताकि आप देखोगे जब मैं कहूँगा 5 नंबर के डिफरेंस में 200 रैंक का डिफरेंस पड़ जाएगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए 5 नंबर मतलब एक 10 मार्कर, एक 10 मार्कर का आधा पार्ट अगर गलत हो गया तो आपकी 200 रैंक का फर्क पड़ जाएगा इस एग्जाम में। हाईएस्ट मार्क्स इस बार कितने मालूम है आपको? फर्स्ट रैंकर के कितने हैं? 1043 करेक्ट है। 1043 में रिटर्न कितने, इंटरव्यू कितने हैं? 200 पूरे हैं, फुल 200, ठीक है। तो रिटर्न में कितने हुए? 843, ये याद रखना। फर्स्ट रैंकर के कितने मार्क्स हैं? 843। अब ये मत समझना कि उसका पेपर 843 लायक ही था। और ऑप्शनल में कितने थे मालूम है? मैं बता दूंगा, नहीं याद है तो बताओ ऑप्शनल में कितने थे उसके? 273। कितने मार्क्स है? सिर्फ 273 थे। और केमिस्ट्री में मिनिमम मार्क्स ऑलमोस्ट 273। हाईएस्ट तो 300 क्रॉस कर गया होगा। हमारे फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स 318 है, केमिस्ट्री में 273 को कोई बहुत हाई मार्क्स नहीं गिना जाता है। आपको बड़ी बात बताऊं, केमिस्ट्री में हाई मार्क्स का मतलब है 320, 315। केमिस्ट्री में 300 क्रॉस होता है, बाकी सब्जेक्ट में 300 फर्स्ट रैंक करके भी नहीं आते, इसलिए केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर नहीं आए हैं तो आने की फाइट करी जा सकती है, मतलब आपका आंसर कुछ ना कुछ लैकिंग है, जो एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेशन है उससे लैकिंग है, क्योंकि सब्जेक्ट में मार्क्स आता है। सब्जेक्ट में हाईएस्ट तो 330 तक आता है, 330 का 334 तक, 334 तक हाईएस्ट आता है केमिस्ट्री ऑप्शन में, 338 भी आया है, ठीक है। लेकिन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में बहुत रेयर होता है आना। केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट रूटीन अफेयर है कि 300 से ऊपर तो 5-10 लोगों को हर साल आता है। यहाँ 275 की बहुत फाइट नहीं है। अगर आप पूरा सिलेबस ढंग से कर लोगे, पूरे क्वेश्चन को लिखाओगे, तो 275 तक मार्क्स कैन बी स्कोर्ड बाय सिंसियर एफर्ट्स। 6658 टोटल मार्क्स है, जिसमें 312 केमिस्ट्री में, 634 पूरे मार्क्स हैं, फुल मार्क्स है, जिसमें 302 केमिस्ट्री के। ठीक है, अभी रुको, अब अभी आपका ही डोमेन दूंगा, उसके बाद इन लोगों को दूंगा। अभी पहले मैं अपना ख़त्म कर लूँ। मुझे अब इसके बाद अगर तुमको कुछ देखो क्या क्या मैंने बताया कि पूरी ये इक्वेशन पहले IAS, अगर किसी को 100 के अंदर, मतलब जनरल कैटेगरी में IAS सिर्फ 80, 81 में मिलता है, और बता दूंगा आपको मैं। जनरल कैटेगरी में अगर आपको 80 से नीचे की रैंक है तो आपको IAS नहीं मिलेगा, और 80 के अंदर रैंक लाने के लिए अंगूठे का नियम है, मूर्ख वाला, गधे वाला नियम क्या है कि इंटरव्यू में 190 क्रॉस होने चाहिए। 190 से नीचे वाला IAS और इंडियन फॉरेन सर्विस में नहीं सिलेक्ट होता है। तो इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स बता रहा हूँ 180 प्लस चाहिए टॉप 100 की रैंक के लिए। और यूपीएससी का मार्किंग प्रोसेस इस तरीके से है कि अगर आपको इंटरव्यू में 180 से कम आ रहा है तो यू डू नॉट डिजर्व टू बी इन ऑल इंडिया सर्विस। ना तो आपको IAS मिलेगा ना आपको IFS मिलेगा। बहुत घीस मेहनत करके IPS तक पहुंच पाओगे। तो टॉप रैंक के लिए तो इंटरव्यू में आपका 190 चाहिए, ठीक है। और लास्ट कट ऑफ 90 रैंक 80 रैंक का कितना कट ऑफ है, किसी को याद है? अगर 80 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 80, तो उसका इंटरव्यू के बाद का टोटल मार्क कितना है? 1015 होगा। 1015 में चलिए एवरेज 175 का देता, 175 घटाओ, रिटर्न में कितना आना चाहिए? अगर किसी को IAS बनना है, तो बहुत सारे ऐसे कहते हैं मुझे टॉप करना है, मुझे IAS बनना है, तो IAS बनने की इक्वेशन पहले दिन समझ लो कि IAS बनना है, मतलब जनरल कैटेगरी के अगर हो तो 80 के अंदर रैंक लानी है, और OBC के हो तो 300 के अंदर रैंक लानी है, SC के हो तो 600 के अंदर रैंक लानी है, ST के हो तो 650 के अंदर रैंक लानी है। उनके कट ऑफ याद कर लो और रिटर्न का फिट कर लो कि इंटरव्यू में 175 एवरेज चाहिए, इससे नीचे में रेयर स्टाफ रेयर होता है कि आपको IAS का कैडर मिलेगा। तो रिटर्न का मार्क्स 830 के आसपास चाहिए आपको। 830 के आसपास अगर रिटर्न का मार्क्स है तो 100% यू आर गोइंग टू बी IAS, IPS, IFS में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका 130 डिजायरेबल स्कोर है। उस 130 में 300 को एम करो, केमिस्ट्री में 300 आए, बाकी फिर भी आपको 530 मार्क्स GS के पेपर्स में और essay में लाना है। इसका मतलब है कि दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स होलिस्टिक पर्सनालिटी, होलिस्टिक मार्कशीट, नॉट दैट बाई
300 इन केमिस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स, आउटस्टैंडिंग मार्क्स, ए ग्रेड के मार्क्स हैं 300 केमिस्ट्री में। इसके बाद भी कितने लाने हैं तुमको? 530। तो अगर तुम्हारा जीएस खराब है और ऐसे खराब है तो कभी ये एग्जाम पास नहीं होगा। थंब रूल के तौर पे कह के मैं बात को खत्म करने जा रहा हूं। कोई ये सोच ले कि मैंने इसलिए केमिस्ट्री लिया है कि मुझे लिखना नहीं आता, या मेरी राइटिंग एटीट्यूड अच्छा नहीं है, या मुझे ये नहीं आता, और भाई आप यूपीएससी का स्टेप ही नहीं हो। यूपीएससी स्टेप के लिए यू हैव टू बी गुड एट राइटिंग। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम आई से वेरी सिंपली दिस इज द एग्जाम ऑफ बोर्ड टॉपर्स। अगर बोर्ड में टॉप करे हुए हो 12वीं क्लास में तो एग्जाम सबसे स्मूथ बिट है, क्योंकि बोर्ड का टॉपर वही होता है। आईआईटी जेई में हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ाएगा आईआईटी बॉम्बे में जाके, लेकिन बोर्ड का टॉपर वही होता है जिसका फिजिक्स अच्छा है, जिसका केमिस्ट्री अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, होने के साथ साथ लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है, उसका हिंदी भी अच्छा है, उसका इंग्लिश भी अच्छा है। तो अच्छे इंग्लिश का एग्जाम है। योर लैंग्वेज हैज टू बी गुड, नीट एंड क्लीन, वेल बैलेंस। बोर्ड का एग्जाम वही टॉप करता है जिसका अच्छा होता है। अगर ये एटीट्यूड और नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली है, केमिस्ट्री पढ़ लिया है, तो हैंड राइटिंग भी इंप्रूव करने की कोशिश करो। जितना लिखोगे उतनी अच्छी हैंड राइटिंग बनेगी। आंसर लिखना सीखो। सो एफर्ट बहुत करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे की इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो है, हर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है। दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स 1800 आवर्स ऑफ इंट्रिंसिक एनर्जी। 1800 आवर्स अगर आप एक साल में करोगे तो 5 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। 10 घंटे पढ़ोगे तो 6 महीने में हो जाएगा पूरी तरह तैयारी। होल प्रिपरेशन कैन बी डन विद इन दैट टाइम। ओके, सो आई विल नॉट टेक मच टाइम, यू हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। मेरा सबका इंट्रोडक्शन हो गया। 4-5 दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं इसमें, एक आईआईटी से, गुवाहाटी से बीटेक करके आए हैं, ये टेस्ट सीरीज के लिए आए हैं खास तौर पे, बाकी सब एमएससी पास हैं। ये बेटी हैं, ये महाराष्ट्र से आई हैं, इनको थोड़ी फाइट है क्योंकि इनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है। बाकी सबका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बाकी सबसे फिजिकल केमिस्ट्री बढ़िया से चलेगी। सो अब दो एक्सपर्ट्स बने सामने। इस साल के टॉपर केमिस्ट्री ऑप्शनल के साथ हाईएस्ट रैंक 84 रैंक है, 88 रैंक उत्कर्ष पाठक जी हैं। और अब पहले मैं तो डायस डॉक्टर आर के सिंह जी को दूंगा, आपका पूरा परिचय मैंने करा दिया है। अब आप केमिस्ट्री के बारे में सिर्फ बताइए, फिर उत्कर्ष जी और आयुष जी दोनों के साथ, दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 15-15 मिनट में अपना, पहले तो अपना करियर जर्नी कैसे सेमिनार चलेगा कि अपने बारे में बता दें। जैसे मैं श्रावस्ती जिले से आए हैं, बलरामपुर जिले से, फिर कहाँ से बीएससी किया, एमएससी किया और कैसे किया वो बैकग्राउंड, ताकि आप लोग कनेक्ट करें। आयुष जी अपने बारे में बता देंगे 10-15 मिनट में जर्नी। फिर आप लोग अपने क्वेश्चन 15-15 मिनट में, क्योंकि उनको जाना भी है, दोनों को जाना है, सो उसको 15-15 मिनट्स में आप दोनों के साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। Whatever the questions you have got, you can ask. That is the use of the seminar. और डॉक्टर साहब बैठेंगे पूरी देख रेख करने के लिए, और उसके बाद मैं आखिरी में आऊँगा, आखिरी में फिर आऊँगा कुछ पूछने के लिए। कोई मास्टर होता है ना, मास्टर ऑफ द सेरेमनी, कि आखिरी में कोई चीज़ रह जाए कभी बेसी भूल चूक लेनी देनी मेरी। हाँ, बैक प्लेयर समझ लीजिए, ठीक है। वाजपेयी सर, आईआईटी बॉम्बे का ग्रेजुएट हूँ, जेएनयू का एमफिल पीएचडी हूँ, बाकी और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरा नाम जो है गूगल सर्च में मालूम पड़ जाता है। सो नाउ आई गिव दिस डायस। ये डायस का मतलब क्या है और बता दूं। डायस हमने बनाया था दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है। डायस का मतलब प्लेटफॉर्म। डायस का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली इंग्लिश में? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म फॉर एकेडमिक एक्सचेंज। कि मोनोलॉग ना हो, क्योंकि टीचरों को क्या है, मोनोलॉग करने की, बोलने की आदत है। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे सर से पढ़वा लो, 6 घंटे सर बोल सकते हैं। अब जैसे ये सेलेक्ट हो गए हैं तो इनको भी बोलने की अभी से आदत पड़ रही है। रोज दिन में कम से कम 20-20 25-25 बैठकों को बोलना है। तो फायदा क्या होगा, और तुमको भी अगर उसी लेवल में बनना है तो जो स्किल्स इधर हैं वो स्किल्स आपको इम्बाइब करनी है अपने अंदर। ये नहीं है कि सबके पास होती है, धीरे धीरे कल्टीवेट करनी पड़ती है। यू हैव टू बी आल्सो लाइक दैट, कि जितना एफर्ट इन लोगों ने किया है उतना एफर्ट आप करोगे तभी इधर आओगे। बहुत डिफरेंस होता है। इंट्रिंसिक एनर्जी है, उसको जागृत करना होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब। नो डायसिस टू यू। लाइव है, लाइव है, लाइव है, लाइव है। ठीक। वेलकम टू उत्कर्ष पाठक, 88 रैंक। ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, and post graduation from IIT Delhi. He also qualified GATE and joined ONGC in year
2019 and in the on-off mechanism, and thereafter he prepared for civil services examination with chemistry optional and get reserve list selection last year, and now in this year 88 rank. Okay? So welcome Utkarsh Pathak. Now आयुष सैनी, क्योंकि हम सुमित सैनी से काफ़ी परिचय हैं तो हमको सारे लोग सुमित सैनी लगते हैं, नहीं, आयुष सैनी फ्रॉम IIT कानपुर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज मोर क्लोजर टू माई ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग. सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही डन classroom program in 2021-22 and qualified this year as 194 rank. Now he also gave an interview in second attempt also with chemistry optional but not selected. Now केमिस्ट्री के बारे में चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले हम उत्कर्ष पाठक को इनवाइट करेंगे कि अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रिपरेशन, क्योंकि हमारे साथ तो 5.5 महीने करना है, हमारा तो सुनना ही है, मजबूरी है. तो इनको जल्दी है, ज्वाइन करना है, तो इनका क्या अप्रोच रहा, क्या स्ट्रेटेजी रहा, क्या केमिस्ट्री ऑप्शनल के लिए. एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि केमिस्ट्री ऑप्शनल केमिस्ट्री वाले ही नहीं रखते, वही जो है PSIR, सोशियोलॉजी इधर उधर, और बीटेक वाले अगर ऐसा करें और अनफॉर्चुनेटली ना हुआ तो उनके लिए कोई ये नहीं है, वो अपने ब्रांच में वापस जा सकते हैं. बट केमिस्ट्री वाले अगर कोई और ऑप्शनल से तैयारी कर रहे हैं, और सिलेक्शन तो होना चाहिए बट पॉपुलेशन के कारण लिमिटेशन है. कंपटीशन टफ होने का एक कारण है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. 6 लाख जहां अपीयर हो रहे हैं 1200 पोस्ट के लिए मैक्सिमम, वो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं है, वो प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है कि बाकियों को रिजेक्ट कैसे करें. तो हर पॉइंट पर रिजेक्शन होता है. जैसा कि हम हमेशा बताते रहते हैं कि 7 कंपोनेंट हैं मेजर, और उस 7 कंपोनेंट में कहीं भी गड़बड़ी हो गई तो आप फिर बैक टू पवेलियन आ जाते हैं. हिट विकेट भी आउट होता है. सीसेट भी अगर गड़बड़ हो गया तो आप उतने ही दिन के लिए पीछे हो गए जितने दिन इंटरव्यू पे पहुंचने के बाद ना हुआ तो बराबर हो गए हैं. ठीक, तो ये है कि केमिस्ट्री वाले अगर केमिस्ट्री छोड़ दिए तो फिर वो नहीं होने पे वापस कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ह्यूमैनिटीज वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और केमिस्ट्री तो आप पहले ही छोड़ चुके हैं. ठीक, तो ये चक्कर है. वो इन सभी बातों पे हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, बट अभी आज उत्कर्ष पाठक सबसे पहले एक इनको हम माइक देते हैं. हेलो एवरीवन. अभी जैसा कि सर ने बताया, ठीक है, मेरा नाम उत्कर्ष पाठक है और इस ईयर मेरी 88 रैंक आई है. इससे पहले लास्ट ईयर जो है मेरा रिजर्व लिस्ट पे सिलेक्शन हुआ था और ओवरऑल मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था. तो अगर सर ने बोला कि केमिस्ट्री की जो है पर्टिकुलरली मुझे केमिस्ट्री के बारे में बात करनी है, तो लास्ट ईयर भी मैंने मेंस लिखा था, केमिस्ट्री से ऑप्शनल रहा है मेरा, और इस बार भी. अगर दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस था लास्ट ईयर केमिस्ट्री ऑप्शनल मेंस में और इस ईयर, तो लास्ट ईयर मेरे केमिस्ट्री में 268 मार्क्स थे और इस बार 291 मार्क्स हैं मेरे केमिस्ट्री ऑप्शनल में. जो मेजर डिफरेंस था कि लास्ट ईयर जो है गाइडेंस की कमी थी, मैंने पूरी प्रिपरेशन सेल्फ की थी. जैसा कि सर ने बताया कि पता नहीं होता है कि केमिस्ट्री में एवेन्यूज़ क्या हैं, किस तरह से आप क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से. तो वो एक मेजर जो है लास्ट ईयर एक डेफिसिट था.
तो इस बार मैं सर के पास आया, मुझे अपनी फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि सिंह सर हैं और केमिस्ट्री में एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सकती है। तो इस बार मैंने मेंस के ड्यूरेशन में प्रैक्टिस की है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। सर जो टेस्ट सीरीज सर की है वो मैंने फॉलो की है डिलीजेंटली, और रिवीज़न किया है मल्टीपल टाइम्स। जो भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन थे सर ने मुझे नोट्स प्रोवाइड किए, तो वो उन सब का मैंने रिवीज़न किया, अच्छे से प्रैक्टिस की है, PYQ किए हुए हैं, तो उससे डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। अब मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने तो केवल सर से नोट्स लिए, उनको फॉलो किया और टेस्ट सीरीज़ की, लेकिन जो क्लासरूम प्रोग्राम का जो भी पार्ट है सर का, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप जो है बाकी GS के सब्जेक्ट के साथ अपनी अप्रोच को बैलेंस रखें। आपको GS में भी, जैसा कि अभी वाजपेयी सर ने बोला, कि वहाँ पे भी आपको अच्छा स्कोर करना है। साथ ही साथ केमिस्ट्री में नो डाउट आपको 300 का टारगेट रखना ही रखना है, और सर की हेल्प से आप उसको अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल है ये चीज़। आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ है, जो भी सर वीकेंड पे या मंथ के एंड में या फिर मेंस के ड्यूरेशन में जो भी टेस्ट सीरीज़ है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है, उसको रिवाइज़ करना है अच्छे से। अब मैं और भी बात करूँ तो मैंने BSc केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैंने IIT दिल्ली से मास्टर्स किया, जो कि 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ। 2019 में गेट के थ्रू मैंने गेट और नेट जो कि केमिस्ट्री वाले एग्ज़ाम लिखते हैं वो मैंने लिखा। गेट में भी मेरी रैंक 12 थी और नेट JRF में मेरी AIR 5 थी, ऑल इंडिया रैंक 5। तो मैंने गेट के थ्रू फिर ONGC में मैंने जाना जो है डिसाइड किया उस टाइम पे 2019 में। और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 2021 में। मेरी पोस्टिंग थी मुंबई में, मुझे ऑफशोर मिला हुआ था, तो मेरी समुद्र में पोस्टिंग थी। और जो मेरा वहाँ पे ड्यूटी साइकिल था 14 डेज़ ऑन और 14 डेज़ ऑफ। तो मुझे बेसिकली 14 डेज़ ही मिलते थे। जब मैं सी से बाहर आता था तो उस टाइम पे ही मैं अपनी तैयारी करता था। तो इससे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप करना चाहें तो कैसी भी परिस्थिति में कोई भी सिचुएशन आप कर सकते हैं। तो 2021 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहला जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। सेकेंड अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तो गया और रिजर्व लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और फिर अभी लास्ट अटैम्प्ट में 88 रैंक है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मेरी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन रही है वो जिस तरह से होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं रहा, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। मैंने ये सोचा कि भाई जब मेरा मेंस का जो ड्यूरेशन आएगा 3 मंथ का, तो मैं उसी टाइम पे करूँगा और अच्छा स्कोर कर लूँगा। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ जो है सेकेंड टाइम में। फिर जो है एक मेरी फ्रेंड थी, वो सर को जानती थी, उसने बोला कि आप सर के पास जाइए। तो मैं तुरंत, जब मैं अगला मेंस लिख रहा था, मैं सर के पास आया, बोला सर ऐसी ऐसी बात है, और मैंने इससे पहले जो है प्रॉपरली नोट्स नहीं है मेरे पास, और लास्ट टाइम भी मेरा स्कोर अच्छा नहीं था। तो सर ने जैसा जैसा सर ने बताया मैंने डिट्टो वैसा किया है। कुछ भी मैंने अपने तरफ से फिर ज़्यादा उसमें सोचना या दिमाग लगाना ऐसा कुछ भी नहीं किया, और स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। अब चूँकि मेरी थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन नहीं थी, तो इस वजह से मार्क्स और भी इम्प्रूव हो सकते हैं, ये मैं भी मानता हूँ। और क्या, चूँकि मैं जैसे बताया आपको कि मैं ऑफशोर में था 2019 से, मैंने फरवरी में रिज़ाइन किया है ONGC से। तो मैंने 5 साल तक जो है समुद्र में रहते हुए तैयारी की है। 14 डेज़ में सी में रहता था और 14 डेज़ सी से बाहर रहता था। केमिस्ट्री वालों को आइडिया होगा शायद, मुझे लगता है ONGC के बारे में, या फिर आप बीटेक है ना, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, वो उसमें भी जाते हैं लोग ONGC में। तो वहाँ पे 14 डेज़ का जो टाइम रहता था उसमें 2-3-4 घंटे निकलते थे, और फिर उसके बाद जो 14 डेज़ में जब बाहर आता था तो जितना मैक्सिमम दे सकता हूँ मैं 10 घंटे 11 घंटे। प्रैक्टिकल कभी कभी लगता है कि नहीं हो सकते हैं 10 आवर्स, लेकिन मेरे पास मोटिवेशन थी, क्योंकि मैं सी में कुछ नहीं होता नहीं था मुझसे, तैयारी नहीं होती थी। वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। आपको 12 आवर्स की ड्यूटी पीरियड होती है, मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8। उसके बाद आप 8 बजे के बाद ही कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से मैं बाहर जब आता था तो मैं फिर अपना जितना मैक्सिमम दे सकता हूँ उतना देता था मैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग अगर डेली एक बेसिक जो है मिनिमम आवर्स दे सकते हैं। अभी आप तो क्लासेस होंगी तो मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप 6 to 8 आवर्स भी अगर एक बेसिक इतना देते हैं शुरुआत से, तो बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि कंसिस्टेंसी। आप कुछ दिन तक, हम शुरुआत में 15-20 दिन या 1 मंथ तक तो हम देते हैं टाइम। उसके बाद क्या होता है कि फिर सिलेबस, क्लासेस, इतना उसका हम ओवरवेल्म हो जाते हैं उन सारी चीज़ों से कि फिर हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अपना भी बताया कि मैं 2021 से तैयारी स्टार्ट की है और मैं सी में था, उसके बावजूद भी मैं करता रहा। और कई बार मुझे लगता था कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको सर्टेनिटी नहीं मिलती है, लेकिन आप करते रहेंगे तो एट द एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिज़ल्ट, जो कि मुझे मिला है। 2 बार मेरा सिलेक्शन हुआ, लास्ट ईयर रिजर्व लिस्ट में, और इस बार मेरा 88 रैंक आई है।
कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं तो आपको केमिस्ट्री का बेसिक आइडिया दिया है। केमिस्ट्री में तो सर की जो गाइडेंस है वो मोर देन इनफ है। सर के नोट्स भी, कोई भी मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा बुक्स भी केमिस्ट्री में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर के नोट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, डाउट है आप वहीं पे क्लियर कर सकते हैं। और जो भी सर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं उसके क्वेश्चंस डिट्टो जो है रिपीट होते हैं। मैंने इस बार जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ की, कई सारे क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली जो है फाइनल जो है मेंस में मुझे मिले एग्ज़ाम में। तो केमिस्ट्री के लिए तो इतना मुझे लगता है मोर देन इनफ है। सर की गाइडेंस को, सर के नोट्स को, और जो भी सर आपको टेस्ट सीरीज़ कराते हैं उसको आप फॉलो करिए। बाकी इम्पॉर्टेंट है कि जीएस के साथ आप इसको बैलेंस करके चलें केमिस्ट्री को, क्योंकि ऑप्शनल कोई भी लेंगे आप, केमिस्ट्री या ह्यूमैनिटीज़ का भी लेंगे तो आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है तो आप ओवरवेल्म हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर। लेकिन आपको प्रिपरेशन को बैलेंस रखना है। अगर आप 12 आवर्स डेडिकेट कर रहे हैं तो 6 आवर्स ऑप्शनल को, तो 6 आवर्स आपको जीएस को रखने हैं। टेक्निकल या साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा सा जीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन कंपैरिजन टू केमिस्ट्री। जीएस की पॉलिटी है, सर ने बोला एथिक्स का सब्जेक्ट है, एसए का सब्जेक्ट है, इसमें राइटिंग स्किल चाहिए तो प्रैक्टिस से साथ आती है। मेरी भी, जैसे मैंने केमिस्ट्री मेरा भी बैकग्राउंड रहा है तो मुझे भी राइटिंग स्किल का मुझे इतना अच्छे से पता नहीं था। मैं भी पहला एसए लिखा है मैंने, या पहला मैंने अपना एथिक्स का जब अपीयर किया मैंने पहला मॉक लिखा तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। ठीक है, लेकिन आप उसको विद टाइम आप इम्प्रूव कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ या प्रैक्टिस के साथ। तो बैलेंस करके आपको केमिस्ट्री और जीएस को चलना है। केमिस्ट्री के लिए नो डाउट जो भी सर की गाइडेंस आप उसको फॉलो करिए, और जीएस के लिए भी आप जो है अगर आप डाइस से ही जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे जो भी गाइडेंस मिलती है उसको आप फॉलो करिए। और यही मैं बोलूँगा कि बैलेंस करके प्रिपरेशन को चलना है केमिस्ट्री और जीएस को, क्योंकि दोनों ही डिसाइड करेंगे कि आप मेरिट लिस्ट में हैं या नहीं, प्लस आपकी रैंक को भी वही डिसाइड करते हैं। और दूसरा है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, यही मुझे लगता है कि सक्सेस मंत्र है इस एग्ज़ाम का। तो इन दो बातों पे आप ध्यान करिए। कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं, वो तो इंडिविजुअल का है कि आपका 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, आप सिलेबस देख सकते हैं सारा। ठीक है, जैसे मेरा पेपर 1 मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक रहा है तो उस पर मैंने काम किया। तो आपको देखना होगा ना कि आप जब सर की क्लासेस ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, तो किस पोर्शन में आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, ऑर्गेनिक में थोड़ा उन्हें अधिक वर्क करना पड़ता है। तो आपको इंडिविजुअल का देखना होगा ना कि आप किस जगह पे आप यू आर लैकिंग इन पर्टिकुलर पोर्शन। ठीक है, अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है तो आपको फिजिकल जो है आसान लगेगी। ठीक है, केमिस्ट्री में सेकेंड पार्ट ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा सा और भी काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपका बीएससी केमिस्ट्री है या फिर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं? केमिस्ट्री है, आपने बीएससी की हुई है, मास्टर्स किया है? हाँ, तो सिलेबस तो ग्रेजुएशन का ही है इसमें पूरा। और उसका एडवांटेज अगर आपने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन की है या फिर मास्टर्स की है तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें आपको सिलेबस में वही दिखेंगी जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है। क्या क्या? हाँ हाँ, अगर आपने केमिस्ट्री के किसी भी जो केमिस्ट्री के एग्ज़ाम है, जैसे कि जैम है, नेट है या फिर गेट है, तो उससे जो फ़ायदा मिलता है कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होते हैं। लेकिन यहाँ पे अप्रोच डिफरेंट है। वहाँ पे आपके सारे ये होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है। आंसर राइटिंग स्टाइल भी मैटर करती है, जैसा कि सर आपको बताएंगे। ठीक है, आपको केवल जो है फाइनल जो है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल है तो आपको केवल जो है सोल्यूशन उसका नहीं लेके आना है, जैसे कि हम अपनी ग्रेजुएशन के ड्यू के एग्ज़ाम में करते हैं कि आपको न्यूमेरिकल है तो आप सॉल्व करके उसको केवल उसका जो भी सोल्यूशन है वो आप ले आइए। यहाँ पे आपको अप्रोच राइटिंग स्टाइल भी मैटर करती है कि आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है बेसिक। ठीक है, उसमें डेरिवेशन है तो उसको भी करना है, जबकि क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा है, तो वो सर आपको बताएंगे कि अप्रोच जो है यहाँ पे अलग है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपने केमिस्ट्री की अच्छे से तैयारी की हुई है जैम के लिए, नेट के लिए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो उसका फ़ायदा मिलेगा नो डाउट। आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड है तो उसका भी डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने क्लास में आपको फैकल्टी ने वो चीज़ें पढ़ा रखी होंगी, टीचर्स ने, आप उस चीज़ को रिपीट होते हुए देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो मे बी एडवांस रहेगा और अप्रोच डिफरेंट रहेगी, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। सर, आप जब
तो आपका माइंडसेट क्या है, मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? केमिस्ट्री में फाइनल जो मेंस का रहता है, देखिए मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट माइंडसेट नहीं था। जिस माइंडसेट के साथ मैंने मॉक दिए हुए थे तो मुझे वैसा ही एक वही माइंडसेट मुझे आई वाज फीलिंग दैट पर्टिकुलर माइंडसेट एंड सेटअप, क्योंकि मैंने 10 या 12 सर के मॉक्स होते हैं तो मैंने किए थे। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि यू आर जस्ट राइटिंग अनदर मॉक। तो वो चीज़ होती है आप अगर प्रैक्टिस करते हैं। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करके जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पेपर को देख के, ठीक है, जैसे पेपर कभी कभी बहुत ज़्यादा लेंदी आता है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, उस सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आपने मॉक केमिस्ट्री में या फिर जीएस में भी आपने प्रैक्टिस की है, बहुत सारे मॉक्स किए, तो आपको लगेगा कि आप एक जस्ट राइटिंग अनदर मॉक। ऑब्वियसली सीरियसनेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी क्योंकि वो एक फाइनल एग्ज़ाम है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आपको बस ये कि वो जो पीरियड होता है, आप बैक टू बैक एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, 10 डेज़ का पीरियड। आप पहले ऐसे होता है, फिर जीएस होते हैं, फिर 5 डेज़ का गैप होगा, फिर आपका ऑप्शनल होगा बैक टू बैक, क्वालिफाइंग पेपर्स भी होते हैं। तो वो एक जो डिफरेंट माइंडसेट होता है कि आपको बैक टू बैक पेपर्स लिखने होते हैं। बाकी पर्टिकुलरली ऑप्शनल या कोई भी आप पेपर लिख रहे हैं तो आपको लगेगा कि जस्ट राइटिंग अनदर मॉक बट विथ एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस। पहले मिनट में आप डिसाइड करते हैं कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ने हैं? हाँ, ये करना होता है। जैसा कि सर ने भी गाइड किया था कि आप स्टार्टिंग का 10 मिनट दें और आप डिसाइड करें कि आपको किस सेक्शन से कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो पहले मैंने भी क्वेश्चन डिसाइड कर लिए थे कि ये मुझे करने हैं 10 मिनट में या 5 मिनट में, और फिर उसके बाद फिर मैंने जो है क्वेश्चंस को करा। तो मैंने पहले 10 मिनट्स को डेडिकेट किया कि मुझे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, किस सेक्शन से कौन से क्वेश्चन, कौन सा मेरा जो है स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कहाँ पे मुझे आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। तो उसको देखते हुए फिर मैंने क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद ही मैंने फिर पेपर स्टार्ट किया और फिनिश किया। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप डेफिनेटली मॉक से ही सीखेंगे। आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो उससे आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि इस बार भी बोलते हैं, जैसे पेपर थोड़ा सा केमिस्ट्री का लेंदी पेपर था, छोटे क्वेश्चन थे बट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस व मोर, तो इस वजह से पेपर मैनेज करना, लेकिन वो सारी अब प्रैक्टिस के साथ आपको चीज़ें आती हैं। वो केमिस्ट्री के साथ भी है, जीएस के साथ भी है। एथिक्स का पेपर है, वो भी बिट लेंदी पेपर, तो क्या सिम ऑप्शनल भी है, आपको लेंदी लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। जैसे जब मैंने पहला अपना मेंस लिखा है केमिस्ट्री के साथ, तो वो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन थी, कोई भी सर की गाइडेंस नहीं थी, कोई भी मॉक, कोई भी पीवाईक्यू, कुछ भी नहीं किया था। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना फ़र्क पड़ता है गाइडेंस का और जो है टेस्ट सीरीज़ करने का। मैं पेपर नहीं फिनिश कर पाया था जब मैंने पहला मॉक लिखा था, ये पहला मेंस दिया था, तो मैं सेल्फ प्रिपरेशन के साथ गया था। मैंने 3 मंथ के ड्यूरेशन में पढ़ाई की और पीवाईक्यू भी नहीं किए थे, और वहाँ पे जाके मैंने पेपर देखा तो क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो मुझे लगता है वो भी प्रॉपर नहीं था। जहाँ पे आई वाज लैकिंग, मैंने वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैनेज नहीं कर पाया मैं, कहाँ पे कम टाइम देना है किस क्वेश्चन में। जो मुझे आ रहा था बस उसको मैं लिख रहा था, जो नहीं आ रहा उसको मैं ऐसे ओके। नहीं, क्वेश्चन मैंने इस बार एक भी नहीं छोड़ा है। क्वेश्चंस गलत हुए हैं 1 या 2, लेकिन मैंने अटैम्प्ट सारे किए थे। जैसा कि सर ने बताया कि भाई आपको स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। आप अगर फाइनल सोल्यूशन नहीं भी ला रहे हैं, लेकिन आपने अगर स्टेप्स की, आपने इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिक डेरिवेशन कर रखा है, तो आपको डेफिनेटली यू विल गेट सर्टेन मार्क्स देयर। तो वो भी करना होता है। सर आपने एसए की तैयारी, हाँ, एसए का जैसे एसए में भी मेरे लास्ट ईयर कम नंबर आए हुए थे, 95 96 थे। अब इस बार मेरे अच्छे नंबर आए। इस बार एसए में जनरली नंबर कम हुए हैं, तो मैंने एसए के लिए एक ऑब्वियसली मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस, जैसे कि मेरी जॉब थी तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता था इतना, और जॉब के साथ छुट्टी भी आपको आसानी से नहीं मिलती है। तो एसए के लिए मैंने फिर हेल्प ली, एक सर थे, तो फिर मैंने एसए लिखे, अपने इवेलुएट कराए। मैंने पीवाईक्यू को प्रैक्टिस किया बहुत ज़्यादा इस बार, और एक चीज़ रियलाइज़ किया कि एसए में आपको बुक्स को कोट करना है, आपको ऑथर्स को कोट करना है बुक के साथ, आपको कोई फ़िलासफ़ी आपको अगर पता है आप उसको कोट करिए। तो वो सारे मैंने फिर इस बार कंटेंट मैंने खुद का अपना क्रिएट किया, और उसके साथ मैंने फिर वही वैल्यू एडिशन किया, प्रैक्टिस की, तो उससे नंबर इम्प्रूव हुए हैं। पहले आपको तो बेसिक जीएस के सब्जेक्ट आपको पहले कवर करने होंगे। जीएस को आप एक बार पेपर 1 2 3 4 होता है, उसके बाद ही आप एसए पे मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक आइडिया आपको पॉलिटी का भी चाहिए, ज्योग्राफी का भी चाहिए, एथिक्स का भी, वैल्यूज़ क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये सारी पता होने चाहिए। फिर आप ऐसे लिखने के लिए जो है आप यू आर कम्प्लीटली रेडी टू राइट एसे। तो एसए के लिए मेरे लास्ट ईयर 96 थे जैसे मैंने बताया, तो मैंने इस बार प्रैक्टिस ज़्यादा की है, पीवाईक्यू को लिखा है,
और वैल्यू एडिशन किया। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। हाँ, टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूरी है। आप एसए, जीएस, ऑप्शनल सबकी लिखनी है। प्रैक्टिस करना है तो आप मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इवेलुएट करना भी ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ मैंने जो है टेस्ट आपको लेने होंगे ना, आपको कोई ना कोई तो उसको इवेलुएट करेगा, फीडबैक देगा, फिर आप इम्प्रूव करेंगे उस पर। प्रीलिम्स के लिए आप खुद की टेस्ट सीरीज मार्केट से परचेज़ करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई पर्टिकुलरली कोई गाइड करे। जैसे केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है, आप देखेंगे सर की टेस्ट सीरीज लेंगे तो सर का जो फीडबैक आता है बहुत अच्छा होता है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव होने वाले हैं। क्या जो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक्सप्लेनेशन तो के साथ देनी होती है, तो उसमें देखिए एक्सप्लेनेशन सभी सबके स्टूडेंट होती है, सबकी सेम होती है, तो उसको थोड़ा डिफरेंट कैसे कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल्स होती हैं दे आर अराउंड द कोर्स और फ्रॉम बुक से भी आते हैं या जो कोर्स करते हैं उसमें से हो जाता है। मैं तो बोला कि केमिस्ट्री के लिए आप सर पे कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं, मतलब कहीं हाँ आप सर का भी पढ़ेंगे तो आप एग्जैक्टली वही तो डिलीवर नहीं करेंगे ना, आप पढ़ रहे हैं नहीं सर, केमिस्ट्री के लिए मैं बोला ना आप इंटरनल एनर्जी एक बैच में ई से करवाते हैं, एक बैच में यू से करवाते हैं। नहीं सर, सारे ही सर के साइंस के साथ ये बेनिफिट है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, ये सब नहीं स्टैटिक। डेरिवेशन है तो आप उसी तरह करेंगे ना, सर कराएंगे, आप बुक से देखेंगे, कहीं से देखेंगे, वही चीज़ रहेगी। और मैं बोला ना सर ने जो कराया है आप उसको डिलीवर कर लेते हैं एग्ज़ाम में तो आप 300 ईजिली स्कोर कर सकते हैं। ये नहीं कि वेरिएशन नहीं, आप उसको डिलीवर कर ले जाएँ, वो आप पर है। टेस्ट सीरीज में सर आपको बहुत सारे आपको जो सर एक हाँ क्लासरूम में आपको सर कुछ कराएंगे, आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको वेरिएशन दिखेगा वहाँ पे, वही क्वेश्चन आप सर डिफरेंट अप्रोच से कर सकते हैं वहाँ पे, उसके आप सोल्यूशन देखेंगे तो आप डिलीवर कर लेंगे जितना सर करा रखे हैं तो आपके नंबर बहुत आसानी से 300 प्लस आ जाएंगे। आप 14 डेज आपको टाइम मिलता है पढ़ने का, 14 डेज आप वर्क करते हैं, ये 14 डेज का ब्रेक होता है बेसिकली, जब आप उस सब्जेक्ट से लिंक भी नहीं देन अगेन कमिंग बैक और फिर से आपको 14 डेज पढ़ना, तो मतलब बेसिकली हाँ नहीं होता था, इम्पैक्ट करता था। तो वही बताया ना मैंने कि वहाँ पे मुझे हार्डली 2 to 3 आवर्स मिलते थे। 8 to 8 की ड्यूटी होती थी, मॉर्निंग 8 to इवनिंग 8, 12 आवर्स की ड्यूटी होती है। और उसके बाद 9 o'clock से 12 o'clock 3 आवर्स का जो होता था उसमें ही मैं जो मैंने किया 14 डेज़ में उसको रिवाइज़ करता था, या न्यूज़पेपर अगर मिल गया ऑनलाइन ऐसा करके तो उसको करता था। तो फिर उसके बाद 14 डेज़ इधर आया। तो जर्नी में भी आपको एक 14 डेज़ में 2 to 3 डेज़ तो आपको जर्नी में निकल जाएगी, क्योंकि मेरी बॉम्बे पोस्टिंग थी, मुंबई में, मैं दिल्ली में रहता था, ऑन ऑफ करता था वहाँ से। तो मैं एक दिन आता तो एक दिन तो आप रेस्ट करेंगे क्योंकि आपने जर्नी की है, फिर 14 डेज़ का बैक टू बैक आपका स्ट्रेच पे रहा है, ड्यूटी की है आपने। लेकिन वही है कि फिर मैंने वही है ना उसको करते करते मैं धीरे धीरे हैबिचुएटेड हो गया था उस चीज़ के लिए, माइंडसेट वैसा हो गया था कि भाई मुझे इतने में 2-3 घंटों में करना है वहाँ पे जो भी मिलेगा, फिर जैसे आएगा फिर मुझे वहीं से उसको जो है पिक करना है। तो मैं बोला ना किसी भी सर्कमस्टांस में सिचुएशन में आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जाएंगे तो जर्नी में आपका 1 घंटे आधे घंटे निकल सकते हैं, यहाँ से आपका जहाँ भी ले रखा होगा आपने अकोमोडेशन। क्या ये जो कोर्स है आपके टाइम में नॉर्मली कितने टाइम अचीवेबल है, मतलब साथ दोनों पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इस बार का मेन सीखना है कितना अचीवेबल है? हाँ तो अभी से आप स्टार्ट करें तो आप लिख सकते हैं इस बार का, मतलब अगला जो प्रीलिम्स होगा फिर अभी। हाँ ये प्रीलिम्स तो आप देकर आए ना अभी। अच्छा नहीं तो आपने कब से स्टार्ट की प्रिपरेशन, कब से स्टार्ट की है? अगर आपने प्रीलिम्स को क्लियर किया तो आपकी प्रिपरेशन पहले से होगी ना आपने। हाँ ठीक है तो आप कर सकते हैं अभी भी। मैं बोला ना मैंने पिछला जो मेंस लिखा था जो मेरी मेंस की प्रिपरेशन थी मोस्टली वो 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में ही थी। थोड़ा सा इम्पैक्ट करता ही है क्योंकि आपकी पहले से है नहीं, अभी ड्यूरेशन मेंस का पहले ये अभी कुछ कम कर दिया इन्होंने, पहले नंबर ऑफ डेज ज़्यादा थे अभी कम हो गए हैं, थोड़ा इम्पैक्ट करता है। लेकिन पहले अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो डेफिनेटली उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। केमिस्ट्री में आप कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज होगी उससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में भी। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रखा तो आपने डेफिनेटली पहले से पढ़ाई की हुई है, आपका एटलीस्ट 6, 7, 8 मंथ्स लगाए हुए हैं तैयारी में, चाहे सेल्फ की है या फिर हेल्प लेके की है, तो फाउंडेशन तो मजबूत है। ये प्रैक्टिस हो सकता है नहीं हुई हो उतनी,
तो 3 मंथ्स में आप कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। केमिस्ट्री आंसर्स में कुछ वैल्यूएशन होते हैं क्या? क्या क्या केमिस्ट्री आंसर्स होते हैं, इसमें जैसे जीएस में वैल्यूएशन करते हैं, ऐसे इसमें भी? हाँ, वैल्यू एडिशन तो हर जगह हो सकता है। आप टेस्ट सीरीज करेंगे, जैसे सर ने क्लास में कुछ कराया, मे भी आप साथ साथ कोई बुक अगर कर रहे हैं फॉलो, टाइम में सब मुश्किल है कि साथ में जीएस है इतना सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे लास्ट जब मैंने लिखा था सेल्फ किया, तो मैंने हुई ये सारी बुक फॉलो करने की कोशिश की थी, लेकिन वो है ही नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। टू बी फ्रैंक की प्रैक्टिकल नहीं है कि आप जो भी सर करा रहे हैं आप उसकी बुक मतलब उतना साथ साथ कर सकें, प्रैक्टिकल नहीं है उतना। लेकिन जैसे सर अभी टेस्ट सीरीज कराएंगे, ठीक है, या बहुत सारे सर जो है क्वेश्चन देंगे सॉल्व फॉर्मेट में, सोल्यूशन रहेंगे उनके, तो वहाँ से आप वैल्यू एडिशन डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वैल्यू एडिशन को मिलेंगी। नहीं, एग्जाम्पल्स नहीं, केमिस्ट्री में एग्जाम्पल्स आप कैसे लिखेंगे? अब जैसे इनऑर्गेनिक है तो उसमें हाँ डेफिनेटली आप जो है ज़्यादा और कुछ ऐड कर सकते हैं। हाँ, जैसे किसी की एप्लीकेशन पूछ लिया, किसी पॉलीमर का ऐसा कोई चीज़ पूछ लिया, तो वहाँ पे अगर ठीक है आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है, आप कहीं से आपने ऐड किया हुआ है, वैल्यू एडिशन हुई है, तो आप उसको वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन आप कोई न्यूमेरिकल पूछ रखा है, उसमें आप एग्जांपल्स नहीं दे सकते ना। अब वैल्यू एडिशन कैसे सर आपको बताएंगे ना कि आप कोई क्वेश्चन है उसमें आप कहीं पे कुछ प्लॉट दे सकते हैं, कोई ग्राफ दे सकते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा कहाँ पे आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो आपको इंट्रोडक्शन तो आपको देना है बेसिक। वैल्यू एडिशन क्या है कि उससे कुछ एक्स्ट्रा आप वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में प्लॉट या ग्राफ नहीं पूछा है, बेसिक आपने एनर्जी का प्लॉट कर दिया, सर बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपको टेस्ट सीरीज से बहुत कुछ मिलेगा वैल्यू एडिशन के लिए। आप बुक से जाएंगे कि वैल्यू एडिशन के लिए मुझे कुछ मटेरियल चाहिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। टाइम मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, बट वो थोड़ा क्योंकि जीएस की भी साथ साथ तैयारी होगी मुझे लग रहा है, ठीक। किसकी? यहाँ तो वही है ना, नहीं तो सर सब कुछ वो सारा फिल्टर करके ही देते हैं सर। अब ठीक है, एक एक बुक पे जाएंगे तो क्लेडन भी अपने आप में, हुई भी अपने आप में, एक एटकिंस भी, हाँ नहीं, फिर वो स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं होगी ना। जब एक प्रॉपर गाइडेंस सब कुछ है आपके पास, सारा कुछ फ़िल्टर करके मिल रहा है, तो फिर आप फिर एक एक बुक पे जा रहे हो। हाँ, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। जितना टाइम बचाओगे, जीएस हो सकता है ज़्यादा चैलेंजिंग फील हो, में भी एथिक्स लगे या फिर ऐसे लगे बिगिनिंग में, तो वहाँ पे लगाना है। क्या? अरे मेरा नहीं मैं, अच्छा ठीक है, वो चलता रहेगा। आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है ना, आपने केमिस्ट्री पहले सर से क्लासरूम पूरा लिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने केमिस्ट्री मेरा मास्टर्स आईआईटी से कंप्लीट हुआ 2019 में, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 2021 में। अभी तक मैंने केमिस्ट्री को उठाकर देखा भी नहीं था, मतलब 2019 में कंप्लीट हुआ, 2021 फिर मैंने 2021 में प्रीलिम्स हुआ नहीं मेरा, फिर 2022 वाले में हुआ, तो ये 3-4 साल का गैप हुआ। फिर वो जो मेंस का जो 3 मंथ्स थे ना, उसमें ही मैंने केमिस्ट्री उठाई थी। 268 मार्क्स थे मेरे, ठीक है। तो 4 या 5 साल का गैप हो गया था। वैसे ये तो इंश्योर करना चाहिए कि गैप बहुत ज़्यादा आपका गैप ना हो, क्योंकि उससे जैसे मेरे मार्क्स कम है, अगर मैंने थ्रू आउट द ईयर पढ़ी होती तो मेरे डेफिनेटली मार्क्स अच्छे होते, ठीक है। लेकिन आपका अगर 3-4-5 महीने का गैप है तो वो कोई ज़्यादा गैप नहीं है। इतना तो कोई भी अगर तैयारी कर रहा है ना, तो वो दिसंबर तक आते आते इतना ऑप्शनल को तो रख देता है एक तरफ, उसको फिर प्रीलिम्स पे फोकस करना होता है। तो उतना तो हर एक जो है सीरियस एस्पिरेंट के साथ हो ही रहा है। दिसंबर के बाद बहुत हार्डली कोई जो है ऑप्शनल को फॉलो करता है, या मे भी जनवरी तक कर लेते हैं, मिड फरवरी तक, लेकिन उसके बाद फिर आपको प्रीलिम्स पे भी तो ध्यान देना है, तो वो कोई गैप नहीं है, उतना मैनेज हो जाता है। अगर आपने पहले से कर रखी तो ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, आयुष सैन, चलिए। टेक्निकल बैकग्राउंड। हेलो एवरीवन, जैसे सर ने बताया मेरा नाम आयुष सैनी है। मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के एक छोटे से टाउन सरसावा से बिलोंग करता हूँ। मैंने इनिशियल स्कूलिंग अपनी सहारनपुर से की, उसके बाद मैंने 2017 में आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरी ग्रेजुएशन है 2021 में। और उस साल भी मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट दे दिया था। वो शुरू में हम
एक ये भूल करते हैं कि देख लेते हैं कि कैसे कि क्या होगा। तो उस साल तो मतलब प्रीलिम्स मेरा 28 मार्क्स से कट ऑफ्स की क्लियर नहीं हुई है। फिर मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आके मैंने ये फॉर्चुनेटली मैं सही जगह लैंड किया, तो मैं सर के पास ही पहुंचा सीधा। तो मैंने नवंबर से कोचिंग शुरू की, मतलब मुझे 22 का अटेम्प्ट भी देना था और मैं नवंबर में ज्वाइन कर रहा था कोचिंग। तो टाइम बहुत कम था क्योंकि उस समय मुझे जीएस भी पढ़ना था, मैंने जीएस भी नहीं सही से पढ़ा हुआ था, और अक्टूबर में पिछला प्रीलिम्स हुआ था, तो गैप बहुत कम था क्योंकि नेक्स्ट वो शेड्यूल्ड उसी टाइम पे था, मई जून में ही था। तो बट ये था, मैं रिलीजियसली यहाँ पे आता था, मैं ऑफलाइन बैच का ही स्टूडेंट था, मैं कभी ऑनलाइन कुछ नहीं पढ़ा है सर से, तो मैं यहीं पे आता था और मैं रेगुलर आता था बहुत। और जैसा सर कहते थे कि मेरे पास एक तो टाइम नहीं था, बट ये अच्छी बात ये हुई कि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इधर उधर भटका नहीं। क्योंकि इस समय जब जैसे आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम केमिस्ट्री में सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, जैसे आप भी बहुत सारी बुक्स बता रहे हैं। मैं भी शुरुआत में कॉलेज के समय मैंने वो KL कपूर का वो पूरा बंडल 6-7 बुक का आता है, वो खरीद लिया, PSP और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की सब क्लेडन सब रखी है मेरे पास, और वो बिल्कुल इतनी नहीं है, मैं उन्हें बेचूंगा अब जाके ना, वो ऐसी वो मैंने खोल के भी नहीं देखी है, मतलब इतना कुछ है पढ़ने के लिए और आप भटकते ही रहोगे। और जबकि इतनी प्रॉपर अच्छे से गाइडेंस आपको सर देंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ और देखने की। मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं लिटरली जो सर ने बताया बस उतना ही फॉलो किया मैं थ्रू आउट दी जर्नी। उस साल भी चलो मैं उस 2022 के अटेम्प्ट की बात करता हूँ, तो जैसे मैंने नवंबर में शुरू किया तो मैंने मार्च अप्रैल तक कोचिंग चली है, मतलब आखिरी के मैंने थर्मोडाइनिक्स वगैरह तो छोड़ ही दी थी क्योंकि प्रीलिम्स बहुत क्लोज था और पहले मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, तो मुझे प्रीलिम्स करना पड़ा, तो मैंने आना बंद कर दिया। मैं कहा सर मैं बाद में कर लूँगा, थोड़ा एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो फिर मैं बाद में करता हूँ। तो प्रीलिम्स जब क्लियर हुआ तो फिर मैंने ज्वाइन किया टेस्ट सीरीज़, मैं सर के पास आया, और उसके बाद भी मतलब मैंने थर्मो वगैरह ये सब बाद में ही पढ़ा। मैंने उस साल भी 281 स्कोर किया था, और उस साल 281 अच्छा स्कोर था। कुछ नहीं किया मैंने, बस जैसा सर ने कहा, सर की जो DPPs थी बस वो सॉल्व करता था, वो भी मतलब PYQ के अराउंड ही सेंटर्ड होती थी, उसमें जो बाकी क्वेश्चंस भी होते थे वो भी वो PYQ के ही लेवल के, वही मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल आपको दे रहे हैं या बहुत लो लेवल आपको दे रहे हैं, जितना अप्रोप्रिएट है वो DPPs में उतना ही होता था। मैंने देखा लोग, मेरे बैचमेट्स भी थे बहुत सारे, तो वो DPPs नहीं करते थे, बुक लाते थे सर के पास उठा के, PSP ला रहे हो कि ये बताओ, और PYQs पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, PYQs को पढ़ ही नहीं रहे हैं, सिलेबस याद नहीं है, तो वो इशू आता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी कुछ काफ़ी लोग तो शुरू कर रहे हैं, अब नया बैच स्टार्ट हो रहा है और आप लोग मेंस लिख रहे हैं, तो आप बहुत रिस्ट्रिक्ट करो अपने सोर्सेज को। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आपको सबको ही पता है, देखो कि सब जगह मार्केट में भरा पड़ा है, और गाइडेंस आपके पास बहुत अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी है। मैं आजकल क्या देख रहा हूँ कि लोग टेलीग्राम पे और इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि टेलीग्राम से नोट्स पढ़ रहे हैं किसी के, वो सब, बट वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। साइंस ऑप्शनल में आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी। ऑप्शनल जो बाकी ह्यूमैनिटीज़ वाले ऑप्शनल है, उनका अब मटेरियल मोर और लेस है उनके पास, वो मार्केट में अवेलेबल है तो लोग पढ़ सकते हैं। बट जैसे उत्कर्ष सर भी बोल रहे थे कि जब उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिली तो उनको पता चला कि वो कहाँ उनकी मिस्टेक थी, उसके बाद उनका स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ। इनके 291 है इस साल, तो ये इस साल के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि टॉपर के जैसे वाजपेयी सर कहते हैं कि 273 हैं, मेरे खुद 278 है इस साल, बट बेटर कर सकता, मतलब 300 प्लस तो ईजिली जा सकता था केमिस्ट्री में, बट स्टिल डिसेंट स्कोर है इस साल के हिसाब से, क्योंकि मेरिट ओवरऑल डाउन है थोड़ी इस बार ऑप्शन की। आप लोगों ने बाकी भी मार्कशीट देखी होंगी कुछ तो 22 में हुआ, फिर 23 में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो खैर अलग कहानी है, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, तो मेरे पास पूरा साल था करने के लिए 24 के अटेम्प्ट के लिए। फिर मैंने वही वापस जो मेरे क्लास नोट्स थे, मैं क्लास नोट्स सब बनाए हुए थे, सब कंप्लीट था मेरे पास, मटेरियल की कोई कमी नहीं थी, तो मैं वही DPPs जो पुरानी थी सर की वही दोबारा मैंने सब सॉल्व की, वो थ्रू आउट द ईयर सॉल्व की। और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होता तो सर कह देते थे कि मैं सर के पास जाता कि सर ये वाला टॉपिक थोड़ा वीक है, तो इसमें कुछ मटेरियल अगर मैं और कर लूँ तो सर कह देते थे कि अगर लगता था सर को कि हाँ ज़रूरी है तो नहीं तो मना कर देते कि नहीं मत करो। जैसे बाद में भी मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़े मार्क्स कम आए थे, जब टेस्ट सीरीज़ आप लोग जैसे देंगे 120 मार्क्स उसमें थे, तो मैं सर के पास गया, मैं कहा सर इसमें कम आ रहे हैं तो कुछ प्रैक्टिस करूँगा। सर ने कहा नहीं हो जाएगा ठीक, तुम इतना ही रिस्ट्रिक्ट करो। तो वो गाइडेंस की मैं अगर कुछ और बुक अगर रेफ़र करने लग जाता तो उसमें फंस जाता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो वही मैं सर की गाइडेंस रही, तो मैं एक प्रॉपर ट्रैक था मेरे पास थ्रू आउट दी जर्नी, जो भी मेरे 3-4 साल लगे हैं, तो सर की गाइडेंस में ही मैं स्मूथली, मेरा केमिस्ट्री तो बाहरों बाहर निकला है, मतलब मुझे केमिस्ट्री के लिए सोचना ही नहीं पड़ा कुछ भी। मैंने GS की कोचिंग नहीं की तो उसमें मुझे बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े, और वो
उसकी वजह से मैं अब तक सफ़र कर रहा हूँ, बट इसमें मुझे गाइडेंस बहुत अच्छी थी तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो इस बार मेरा जब 24 में निकला प्रीलिम्स तो मैं तुरंत आया सर के पास, फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन की। और टेस्ट सीरीज़ में मैं जिस दिन टेस्ट शेड्यूल होता था मैं यहाँ आके उसी दिन देता था, मैंने डिले नहीं किया। मैंने फर्स्ट 40 डेज़ में अपना पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कर दिया ख़त्म। उसके बाद वो फुल लेंथ टेस्ट तो मैं एक दिन में दोनों आके वो दे देता था मैं यहाँ पे आके ना। बट मैंने जो सेक्शनल टेस्ट थे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वो टाइमली ही दिए हैं। वो सर को भी पता है कि मैं एक भी दिन लेट नहीं हुआ हूँ। संडे को टेस्ट होता था, हर संडे मैं यहाँ पे आके टेस्ट देता था और फिर सर से डिस्कशन चलता रहता था। तो ये मैं 4-5 पॉइंट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उससे अगर निकालूँ तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। सिलेबस बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है सामने तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन है कहाँ से, कौन से टॉपिक का है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता ये सब। और सेकंड है कि आपको PYQ फोकस करना है, मेन फोकस आपका PYQ पे है। बेस्ट बात जो केमिस्ट्री ऑप्शनल की है ना वो ये है कि इसका रिपीटिंग नेचर है। वही सवाल आते हैं घूम के, हर साल पार्टिकल इन 1D बॉक्स आएगा ही आएगा, है ना, वो आ रहा है हर साल। वो लेंथेनॉइड, वो कॉन्ट्रैक्शन F ब्लॉक वाला, वो सॉरी लेंथेनॉइड कह रहा हूँ, हाँ लेंथेनॉइड सीरीज़ जो है वो सब वो आएगा ही आएगा, है ना। तो बहुत रिपीटिंग है, इतना रिपीटिंग है कि लास्ट ईयर मुझे याद है 23 में RNA DNA के बेसिस का स्ट्रक्चर आया था बनाने के लिए। तो मैंने क्या मूर्खता दिखाई, मैंने कहा ये लास्ट ईयर तो आ ही गया है तो इस बार तो पूछेगा नहीं। बट इस बार वो कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 5 में वही था बेसिस ड्रॉ करने वाला और मुझे याद ही नहीं था। तो इतना रिपीट होता है सर। तो मतलब अब जैसे आप लोग भी पढ़ेंगे तो सर एक बात बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि पेपर तो आउट है पहले से ही, केमिस्ट्री का पेपर आउट है ना। बस आपको सही से पढ़ना है, सही गाइडेंस में पढ़ना है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस डिमांड करेगा केमिस्ट्री, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिकल आपको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक में आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, फिर उसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जो मटेरियल सर दे रहे हैं, DPPs जो सर देंगे, टेस्ट सीरीज जो सर की होंगी उनको रिलीजियसली आप फॉलो कीजिए, वो ज़रूरी है एक वो करिए। और मर्जी है वैसे ट्राई कीजिएगा कि आप शॉर्ट नोट्स भी बना लें लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, वो साथ साथ बनाते चल सकते हैं। या फिर एक बार आपका सिलेबस हो जाए तो थोड़ा सा बस 2-3 पेज की जैसे नेम्ड रिएक्शंस है तो फटाफट लिख दिया कि ये है, तो आखिरी मिनट रिवीजन इजीली हो जाए आपका। क्योंकि वो जो 5 दिन होते हैं बीच में, जो आपके GS4 के बाद 5 दिन मिलते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा मटेरियल ऐसे दोबारा खोल के पढ़ नहीं सकते, तो वो शॉर्ट नोट्स बहुत हैंडी होते हैं, वो करें आप। और मैंने देखा कि जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं कि उसको कोई, बट वो इतना स्कोरिंग है इस समय। और अब तो वो कंपलसरी में भी आने लगे हैं क्वेश्चन, पहले तो सर शायद आते नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इनऑर्गेनिक डाल देते हैं, तो उस पर भी आप लोग प्लीज़ फोकस कीजिए। इनऑर्गेनिक भी अच्छे से करनी है, जो भी सर मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे बस उसको फॉलो करो। बुक्स पे इधर उधर मत भागो, हुई मैंने ही पढ़ी है, वो सब लोग पढ़ते हैं और मैंने 4 बार पढ़ने की ट्राई किया, वो बुक मुझे समझ में आई ही नहीं, समझ में नहीं आती है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली ऐसे एडवांस लेवल पे वो लिखी हुई है। तो प्लीज़ आपको PhD नहीं करनी है, आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको बस ये एग्ज़ाम निकालना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, कोई आपको अवार्ड नहीं देगा ऐसे आगे कि आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इतना रिसर्च लेवल का पढ़ लिया है तो आपको कुछ नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री देंगे कोई आके, ऐसा नहीं है कुछ भी। बस एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, बस उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है और उतना सर आपको बता देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओपिनियंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं मार्केट में। फॉर्चुनेटली ये था कि हमारे समय में इतनी ओपिनियंस नहीं थी केमिस्ट्री में भी। इस बार अब मैं देख रहा हूँ कि ओपिनियंस बहुत ज़्यादा हैं। लोग पता नहीं कहते हैं कि ये ज्वाइन कर लो, ये मटेरियल पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये बुक्स लिंक्स हैं ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, उन पे खोलोगे आप 10 बुक्स फिजिकल की आ रही हैं, लोग खोल के बैठे हैं फिजिकल का, रैंडमली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो पता ही नहीं है कि ये कितना वेटेज है उसका, बट उसको सॉल्व करे जा रहे हैं, है ना। तो वो ध्यान रखिए। तो और एक चीज़ ये है कि केमिस्ट्री में बहुत सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे आप लोग तो मेंस लिख रहे हैं जो इस बार, तो आप वो जो टॉपिक्स हैं उन पे फोकस, जैसे पार्टिकल इन 1D आप कह रहे थे कि अभी वो रिपीट होता है, वो लो हैंगिंग फ्रूट है। वो देखने में डर लगता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन इतनी बड़ी है, कैसे याद होगी, हाइड्रोजन का वो जो है ऑर्बिटल वाला फॉर्मूला इतना बड़ा है, वो कैसे याद होगा, बट वो बहुत लो हैंगिंग है, उसमें स्कोर बहुत आराम से आएगा। तो वो चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिए। सिलेबस देखते चलिए, PYQs देखते चलिए और उसमें देखिए कि कैसे जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको हम कैसे टारगेट करेंगे, है ना। जैसे कि एटॉमिक वाला तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया और स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, ये सब इजीली बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इतने इजी आते हैं। जेई के समय में हम करते ही थे, ये सब फॉर्मूला में याद होता ही था। और आप लोग सब ग्रेजुएशन जो करके आए केमिस्ट्री में सबको पता है उसका।
तो वो आप आइडेंटिफाई कीजिए। ऐसे ऑर्गेनिक में आइडेंटिफाई कीजिए, थोड़ा बेस अच्छा रखिए, ऑर्गेनिक में थोड़ा बेस अच्छा रखिए। रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है उसको उसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, क्योंकि वो बेस बनेगा तो सारे क्वेश्चंस फिर आगे सॉल्व हो जाएंगे। और स्पेक्ट्रोस्कोपी से लोग डरते हैं, मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं, बट स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत हाई स्कोरिंग होता है। क्योंकि सर जब हम मेंस की टेस्ट सीरीज़ करें तो सर ने बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको एक क्वेश्चन करके ही आना है सेक्शन बी में। लोग स्पेक्ट्रो छोड़ के आते हैं, बट स्पेक्ट्रो बहुत रिवॉर्डिंग है। थोड़ा टाइम लेगी, थोड़ा सा दिक्कत होती है शुरू में कि आप लोगों को पता होगा, बाकी लोगों के लिए शायद थोड़ा सा आउट ऑफ द जोन जा रहा हूँ मैं, बट उसमें एक बार आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। जो वैल्यूज़ वगैरह आप सब याद करेंगे तो स्पेक्ट्रो पे ही फोकस कीजिए। वेटेज स्पेक्ट्रो का बहुत अच्छा है ही, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। बाकी तो सर के टच में रहिए, बस इतना है। और कोशिश कीजिए कि जैसे आप लोग तो टेस्ट लिख रहे हैं यहीं अगर दिल्ली में ही है तो पॉसिबल है तो यहाँ पे आके लिखें और शेड्यूल के हिसाब से लिखें, है ना। और जिनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो पहले प्लीज़ अपना सिलेबस पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लें। रिसोर्सेज जो हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड रहने दें और सर की गाइडेंस में ही रहें। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागे मत। लोग बोलेंगे कि ये नहीं, ये कर लो, ये मटीरियल नहीं, मत ये मत करो, है ना। तो सर को 20 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और सर कितने ही बैच पढ़ाते हैं, 4 बैच एक साल में पढ़ाते हैं। तो वाजपेयी सर कहते हैं कि सर को 80 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब आपके पास गाइडेंस है तो आप क्यों नहीं लेंगे फिर, है ना। तो उस चीज़ का आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए। वैसे तो उत्कर्ष सर ने मोरलेस काफ़ी क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए, है ना। उनकी जर्नी खुद अपने आप में इतनी इंस्पायरिंग है। हम सोचते हैं कि कैसे हो पाएगा, हम रीजंस ढूंढते हैं नहीं होने का कि मेरा तो नहीं हो सकता, मैं तो बिजी हूँ। बट सर बताने की सी में रहते थे 14 दिन, फिर सी कितनी बड़ी बात है ना। तो जैसी भी परिस्थिति हो तो उसी में आपको करना है। IIT सॉरी अच्छा, इनिशिएट कैसे करें। हाँ हाँ, अब ये आंसर राइटिंग केमिस्ट्री का कह रहे हैं आप, इन जनरल। अच्छा, आप कहीं कोचिंग कर रही हैं क्या, क्या आपका मतलब अभी अटेम्प्ट दिया है कभी अभी से पहले? अच्छा, हाँ वो शुरुआती इनर्शिया होता है यार, मतलब वो थोड़ा सा उसमें पुश करना पड़ता है। शुरू में आपको पुश थोड़ा सा करना पड़ेगा। कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर लेना है, कोचिंग जिसमें आप कर रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन कर लें तो थोड़ा लिखना शुरू कीजिए, है ना। वो धीरे धीरे होगा। वो इनर्शिया शुरू में रहता है, मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि यार मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ आंसर लिखने के लिए। बट वो राइट टाइम कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वो राइट टाइम। मतलब हाँ, दोबारा से पहले चैप्टर भूल चुके हो जो हमने स्टार्टिंग में किए, तो उनको दोबारा कैसे पढ़े, क्वेश्चन वाइज आए या नोट्स को पहले रिवीजन स्टार्ट करें कि ये करके। ये पर्सनल स्ट्रैटेजी हो सकती है। मतलब मैं तो नोट्स को रिवाइज करता था रेगुलर। नोट्स तो खैर आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, रिवीजन का तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन सॉल्व करने बट रिवीजन भी इम्पोर्टेंट। तो आपके फर्स्ट टाइम में 281 आए, हाँ, उसके बाद एक साल का गैप हुआ। हाँ, उस गैप में आपने जीएस के साथ उसको कैसे मैनेज किया? मैंने वही हाँ रिवीजन किया, सारा मटेरियल अपना रिवाइज किया, और वो जो डीपीपी सर ने जो क्लास के समय दी थी ना, वही दोबारा सब सॉल्व की, सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व किए। हाँ, ऑन ए डेली बेसिस। मतलब ऐसा है कि कभी मैं थोड़ा जीएस ज़्यादा पढ़ दिया उसके हिसाब से ना, और ऑप्शनल थोड़ा किसी दिन ऑप्शनल ज़्यादा हो गया। ऐसे थोड़ा इरेगुलर था, ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर टाइम ही दे रहा हूँ ऑप्शनल को। जब डिमांड जिस सब्जेक्ट की थी तो उस हिसाब से मैं कर रहा था। और फिर थोड़ा सा अगर आपको एक्स्ट्रा फिजिकल की प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं पीएसपी के एग्जांपल कर लेता हूँ, सर भी बोलते हैं कि कर लो कोई बात नहीं, एग्जांपल पीएसपी के एग्जांपल्स कर लेता हूँ ज़्यादा। किसके? हाँ हाँ हाँ, एक तो आपको डिराइव करने पड़ेंगे वो, हर कुछ आपको तो डिराइव करना ही है वो। तो डेरिवेशन याद रखो, तो फॉर्मूला भी प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस, वो याद हो जाएंगे आखिर तक। अब वो भूल जाएंगे, मैं भूल गया, मुझसे लिखवा लो भी हाइड्रोजन का श्रोडिंगर, मुझे याद ही नहीं है, वो मुझे याद ही नहीं, कुछ भी याद नहीं। हाँ, बस उस समय याद हो जाते हैं, वो हो जाएंगे, वो चिंता मत करो। बट ये जो फॉर्मूलाज है ना, एक शीट पे लिख लेना, ताकि लास्ट डे जब होगा तो एक बार देख लो, है ना। मैं क्या करता था, मैं पढ़ लेता था, फिर रैंडमली कभी ऐसे लिख लेता था कि लिख के देख लेता हूँ, मुझे याद आ रहा है तो ठीक है, मतलब ऐसे करके कर सकते हैं आप। हाँ, किसको दिया टाइम? सॉरी, फेलियर को। हाँ 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 हाँ, उस साल इंटरव्यू दिया था मैंने। हाँ हाँ, है ना। देखो आपको बुरा लग रहा है मेरे लिए, तो मुझे कितना बुरा लग रहा है अपने लिए।
बहुत सारे ख्याल आते हैं कि क्या मतलब है, मतलब हाँ। जैसे हमारे लिए है भी कि नहीं, ये वो- सेल्फ डाउट आखिर तक रहेगा आपको जब तक आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा। तो फिर उसकी फीलिंग भी रहती है। बिल्कुल, ये सेल्फ डाउट में हमेशा आप चलेंगे। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया मेरे साथ जब मैं प्री लिख रहा था। तो प्री से लगभग 1 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा राइट हैंड की मेरी इंडेक्स फिंगर ये टूट गई। ये मतलब ऐसे टूटी कि आधा सेंटीमीटर छोटी हो गई, इतनी बुरी तरीके से टूट गई है। और इसी से मुझे लिखना था तो बेस्ट। और फिर वो प्री तो चलो उसमें तो गोले भरने थे, तो ऐसे करके मैं भर दिए वो सब। फिर मेंस का लिखना था। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि केमिस्ट्री में आपको कंटिन्यूसली बहुत तेज़ नहीं लिखना होता है। आप कभी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो बहुत स्टेप वाइज आप लिख रहे होते हैं। तो मैंने पहले केमिस्ट्री ही निपटा दिया। जब तक मेरी फिंगर थोड़ी ठीक हो गई तो फिर मैंने जीएस की प्रैक्टिस कर ली। तो वो है कि परिस्थितियाँ आएंगी, वो तय है, मतलब वो उसका कुछ नहीं है। ये चैलेंजेस तो देखो लाइफ में आएंगे, सबके डिफरेंट चैलेंजेस हैं। बट आपका एक, जैसे सर कह रहे थे, रेजिलियंस एक होनी चाहिए और एक मोटिवेशन, सेल्फ पुश एक होना चाहिए कि हाँ करना है। आपके पास सबसे बड़ी बात है कि रीज़न होना चाहिए कि आपको ये एग्ज़ाम करना क्यों है। अगर आपका वो रीज़न वैलिड है ना तो वो आपको पुश करेगा। फिर आप मैराथन में दौड़ने के लिए तैयार हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है, जल्दी भी होता है पर थोड़ा टाइम लग भी सकता है ना, ऐसा नहीं है कुछ भी। न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं तो पढ़ता था यार। कैसे कौन सा क्वेश्चन बनाइए, कैसे टाइप करनी है, ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ छोड़नी है, और कितना टाइम उसमें देना चाहिए। जैसे आपको सिलेबस याद हो जाएगा ना जीएस का, तो आपको पता चल जाएगा, आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना। एक बार पूरा सिलेबस याद करना पड़ेगा, हाँ। फिर सिलेबस के बाद बहुत होना चाहिए। हाँ, सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए। देखो आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और कौन सा पोर्शन का कितना वेटेज है वो भी पता होना चाहिए। उसके लिए जैसे न्यूज़पेपर की हाईलाइट करना छोड़ या फिर पूरा उसके अंदर का भी पढ़ना, जैसे आप- एडिटोरियल्स पढ़ लीजिए आप, एडिटोरियल्स तो पढ़िए। एडिटोरियल से क्या क्या देखो न्यूज़पेपर जैसे आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अभी यूपीएससी की, तो न्यूज़पेपर से आपको सबसे बड़ी बात है कि वो आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग एक्सट्रैक्ट करनी है न्यूज़पेपर से कि इस देश में चल क्या रहा है, इस दुनिया में चल क्या रहा है। आपको कुछ उससे डेटा उस हिसाब से नहीं सोचना है कि मैं इससे क्या नोट्स बना लूँ, इससे क्या फैक्ट एक्सट्रैक्ट कर लूँ। वो सब होगा, वो सब काफ़ी लोग वो भी करते हैं, बट वो अपने टाइम के साथ बाद में होगा। अभी आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके नोट्स वोट्स मत बनाइए, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें ये S-400 इस्तेमाल हुआ है, ये उस पर वर्ल्ड में क्या डिबेट चल रही है, या कोई आर्टिकल आया तो वो आप पढ़िए कि उसको समझने की कोशिश करिए कि इस देश ने ऐसा क्यों किया, वो स्टेप हमें क्यों लेना पड़ा, और उसका क्या इम्प्लीकेशन है ग्लोबल स्टेज पे, और या इंडिया के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पे क्या इम्प्लीकेशन है। जो भी एक ऐसे लर्नेड सिटीजन जैसे ताऊ और दादा पढ़ते हैं ना अखबार, तो इस तरीके से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, स्टार्टिंग में आइडियल टाइम कितना होता है? आप कितना दे रहे हैं फिलहाल? फिलहाल स्टार्ट में नहीं किया, वही सोच रहा हूँ। अच्छा डाउट से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब मतलब मैं अलग अलग है वो सबका। जैसे तीन हो गए, VIP हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, ऐसा कुछ भी है कि किसी का क्रिटिसिज्म पढ़ना तो हिंदू को पढ़ना, दोनों चीज़ पढ़नी है तो एक पढ़ लो, कोई भी एक पढ़ लो, वो आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ लेना आप। पढ़ लो। हाँ 1 आवर आइडियल है, मतलब उतना ही मैं पढ़ता था, 45 मिनट से 1 घंटा में पढ़ता था बस। जैसे हम CS में देखते हैं, स्पेशली जैसे हिस्ट्री देखते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे नाम भी होगी तो सब वाला है कि जैसे कुछ टाइम बाद में भूल जाएगी, तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया कि ये हमें याद रहे कि इसका ये वर्ड था और इसका भी ये था। भूल तो जाएंगे, मतलब वो कह रहे हैं ना जो वर्ड्स हैं, जैसे कॉइन वॉइन का नाम आया था कुछ साल पहले ना, वो वैसे कह रहे हैं ना, भूल जाएंगे यार। वो तो वो कहीं लिखा होगा तो फिर रिवीजन में आ जाएगा, बट वो इतनी चीज़ें याद नहीं रह पाएंगी। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक स्टार्टिंग में कर लिया कोई सब्जेक्ट, अब पूरे टोटल देखे तो ये 15-16 सब्जेक्ट हो जाते हैं इसमें। हाँ। तो जो पहले सब्जेक्ट हमने किया है उसको दोबारा रिवाइज साथ में किया या पूरा सिलेबस होने के बाद दोबारा उस सब्जेक्ट को उठाया? देखो यूपीएससी का ना एक ये मिसकंसेप्शन थोड़ा सा रहता है कि बहुत नॉलेज ओरिएंटेड है। ये नॉलेज ओरिएंटेड से ज़्यादा ना एक अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड एग्ज़ाम है। आपको चीज़ें ना समझ में आनी चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ओवर द पीरियड वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। क्योंकि जब मेंस आप लिखेंगे या प्रीलिम्स भी आप लिखेंगे तो वो क्वेश्चन, इनफैक्ट पीटी भी जब इंटरव्यू भी आप देने जाएंगे तो वो क्वेश्चन वो वहाँ पे वो नहीं आएंगे जो आपने प्रैक्टिस किए होंगे या पढ़े हुए होंगे, बट आपके साथ वो अंडरस्टैंडिंग होगा जिससे वो आंसर लिख पाएंगे आप। तो ट्राई कीजिए जब आप थ्रू आउट पढ़ रहे हैं ना, जीएसपी या कुछ भी पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अर्बन फ्लडिंग पढ़ रहे हैं
तो आप उस पर अपना दिमाग चलाइए कि क्यों हो रहा है, क्या क्या इश्यूज़ हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप कोचिंग के मटेरियल के पीछे भाग रहे हैं, वो सब पॉइंट्स याद मत करो, पॉइंट समझो और ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो उन पे फोकस करो। उस पर यही मतलब ये मेरे साथ क्या होता था, जैसे 2022 का मैं बताऊं आपको, तो मैं बहुत फैक्ट्स इकट्ठे करता था, मैं बहुत नॉलेज ओरिएंटेड सोचता था। और फिर वही जैसे आप कह रहे हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और सबका याद रखना है, तो जैसे एक एग्जांपल मैं बताया करता हूँ कि जैसे अर्बन फ्लडिंग वाला एक एग्जांपल है, तो उसमें मैं उस साल में क्या लिखता था कि कोपेनहेगन मॉडल आपको अप्लाई करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। कोपेनहेगन मॉडल है यार, कुछ होता होगा बहुत अच्छा अप्लाई, बट इंडिया में क्या ग्राउंड पे वो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? इतने रिसोर्सेज और मैन पावर हमारे पास है कि हम कोपेनहेगन मॉडल ही अप्लाई करते हैं शहरों में। उससे अच्छा अगर आप ये लिखेंगे ना कि मानसून से पहले नालों की सफाई करो, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल पॉइंट है। तो ये कहीं नॉलेज से तो नहीं आ रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है। तो ट्राई कीजिए कि आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए, आपका जीएस अच्छा हो जाएगा। मैंने कोचिंग नहीं की, मैं बहुत अच्छा जीएस मेरा नहीं है, बट फिर भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है। तो वो बिना कोचिंग के मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का ट्राई किया और मैंने वो अपनी गलतियों से सीखा 22 वाली से क्या नहीं करना है। तो आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपको करनी है। छोड़ दो अभी वो वर्ड्स वगैरह, आप हिस्ट्री के जो सोच रहे हो ना, वो प्री का बात है, वो मतलब बाद में कर लेना, वो जनवरी में, है ना। अभी तो मेंस ओरिएंटेड आप स्टार्ट करो, है ना। तो वैसे मतलब अच्छा हो सकता है, देखो वो तो हमेशा रहेगा दिमाग में ना, वो जैसे उत्कर्ष सर के भी दिमाग में रहेगा, ये हो सकता है। पढ़ लो, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई बुराई तो नहीं है ना, तो पढ़ लो, थोड़ा कम टाइम दे लो, कोई बात नहीं, बट पढ़ लो तो अच्छी बात है। न्यूज़पेपर पढ़ना तो अच्छी बात है। काफ़ी लोग तो प्री के बाद पढ़ना शुरू करते हैं न्यूज़पेपर। कल मैं एक टॉपर के साथ था, 115 रैंक है उनकी, वो कह रहे मैं पढ़ता ही इससे प्री के बाद था, मैं उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता था, वो इसलिए पढ़ते थे। तो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट न्यूज़पेपर पढ़ना वैसे अच्छी बात है। वाजपेयी सर का देखो भी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, तो इनको एग्ज़ाम थोड़ी देना है, बट एक लर्नेड सिटीजन जो होता है सोसाइटी का, वो यूपीएससी की डिमांड भी वही है कि आप अवेयर होने चाहिए, अपने आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पढ़ लो, न्यूज़पेपर तो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और किसी को कुछ बस वैसे सेमिनार केमिस्ट्री के लिए फोकस था, ओपन एंडेड हो गया वो। नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। नहीं आप बोल देते ना सर। मैं तो ये सिर्फ कह रहा था, मजाक कर रहा था बाद में पूछ सकते हैं सेमिनार जो था, पर्पज ऑफ द सेमिनार वाज टू टॉक अबाउट केमिस्ट्री ऑफ because nowhere else they will learn anything about the chemistry. हाँ जीएस में तो मतलब खाने का तड़का था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जीएस मेन स्ट्रीम नहीं है। बिल्कुल। हमारा मेन स्ट्रीम जो आए हैं सिर्फ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, और इनको मैं कितना भी कहूँगा, मेरे यहाँ जीएस की क्लास भी नहीं करते हैं। मैं इनको बार बार कहता हूँ, मेरे यहाँ जीएस का क्लास जो है एक्सक्लूसिवली साइंस ग्रेजुएट के हिसाब से बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। फिर भी 2 लाख रुपए दे के 2.5 लाख रुपए दे के करते जाते, मैं आगे 20 में करवाता हूँ। रोज क्लास चलती है मेरे यहाँ, 10 फैकल्टी के द्वारा चलती है। मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स इतना शानदार है, तो उस कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से 70 क्वेश्चन प्रीलिम्स के इस बार आ गए। हम लोग देखना, हाँ मुझे दिखाया था सर आपने लास्ट टाइम मैंने देखा। लास्ट टाइम में दिखा था, इतना शानदार मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है। मतलब मैं समझता हूँ कि जीएस की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरा सोचना ये है। और मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट गो फॉर जीएस कोचिंग बिकॉज इट इज शियर वेस्ट ऑफ एफर्ट्स। आप भेड़ बकरी की तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री के और मैथ्स के स्टूडेंट भेड़ बकरी तो है नहीं। भेड़ बकरी हो क्या, बताओ मुझे। और भेड़ बकरी नहीं तो कभी किसी कॉलेज में जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो क्लास में कितने स्टूडेंट होते थे मैथ्स में, बताओ मुझे। 70 होते थे। आप जीएस की क्लास में 300 के बीच में पढ़ने जाओगे, 300 के बीच में, 300 की भीड़ में भेड़ बकरी हो गए कि नहीं हो गए तुम बताओ। इट्स नॉट ए टेलर मेड कोर्स, अवर कोर्स इज ए टेलर मेड कोर्स फॉर यू। You are interacting with the toppers, you are interacting with the teacher, you are interacting with the owner of the institute. Everybody you have got direct access. जो प्रॉब्लम है डायरेक्ट कह सकते हो। आप अगर 300 लोग यहाँ पर बैठे हुए होते तो आप क्या इंटरेक्ट कर सकते थे क्या? टॉपर से इंटरेक्ट कर सकते थे। और इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है? आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन मेक्स अ डिफरेंस ऑफ 10 to 15% ऑफ द मार्क्स। जब एक केमिस्ट्री में है तो जीएस में तो और भी ज़्यादा होगा। केमिस्ट्री तो ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव तो नहीं है। Zn plus H2SO4, Zn+SO4 plus H2 होगा ना, और तो कुछ नहीं हो सकता उसमें। Then also कि how this answer has been presented will make a difference of 1.5 marks. When the answer is so precise, then also presentation of that answer may make a difference of
1 to 1.5 मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क क्वेश्चन, 10 to 15% मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है सिर्फ प्रेजेंटेशन स्टाइल में। तो जीएस में कितना अंतर होता होगा? जहाँ पर आंसर ही सब्जेक्टिव है, आंसर डिपेंड्स अपॉन व्हाट आई लाइक, व्हाट इज द मॉडल आंसर दैट इज अप्लाइड टू मी। सो इफ देयर इज ए क्राउड, डेफिनेटली देयर कैन नॉट बी एनी पर्सनलाइज्ड अटेंशन। सो हमने जो प्रोग्राम बनाया जीएस का, बेसिकली सेल्फ हेल्प प्रोग्राम है। या पहला स्ट्रेटजी होता है, जब भी आप फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जून से स्टार्ट करके पहले नवंबर तक, बाय द मंथ ऑफ नवंबर यू मस्ट बी एबल टू कंप्लीट योर ऑप्शनल। ठीक है, 5 घंटे रोज पढ़ोगे, ऑप्शनल कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से, 5.5 जून से शुरू हुआ, नवंबर दिसंबर 15 तक खत्म हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम यू शुड कल्टिवेट 2 थिंग्स इन जीएस। एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना सीख लो कम से कम, और न्यूज़पेपर पढ़ना एक आर्ट है, वो भी मैं सिखाऊंगा न्यूज़पेपर कैसा पढ़ा जाता है। आई रीड एवरी डे 3 न्यूज़पेपर्स। मेरी माता जी रहती तो दैनिक जागरण पढ़ती है, मेरे घर में दैनिक जागरण सब्सक्राइब हो गया है। मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन आता है तो फ्री में पढ़ लेता हूँ। तो दैनिक जागरण हिंदी का अखबार पढ़ता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल का सब्सक्राइब कर रखा है। देन आई रीड 2 न्यूज़पेपर्स एवरी डे थ्रू आउट माई लाइफ। स्टूडेंट लाइफ से 2 पढ़ना चालू किया था, आज भी 2 पढ़ता हूँ। सवेरे सवेरे हिंदुस्तान टाइम्स देखता हूँ, पूरा होल पेपर आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स, एंड देन आई रीड इंडियन एक्सप्रेस। मुझे मालूम है एडिटोरियल पेज में क्या छपा हुआ। एक पेपर पढ़ने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है, एक पेपर पर। दूसरा पेपर आधा घंटे में पढ़ लेता हूँ। वंस आई गो टू वन न्यूज़ पेपर, देन अदर न्यूज़ पेपर, 2 आवर्स मुझे लगता है। When I have cultivated this for last 30 years, every day, अगर मुझे अखबार नहीं मिलेगा, एक बार बता दूँ मैं, I was working with Tata Robbins Fraser. After my IIT BTech, I joined a company called Tata Robbins, सिंगरौली में जॉब था। वहाँ पर 1.5 दिन के बाद अखबार पढ़ता था, पहुँचता था। 1.5 दिन के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी 10 दिन के अंदर। नौकरी छोड़ने का एक ही कारण था कि वहाँ पर अखबार जो मैं रोज सवेरे सवेरे पढ़ने, मुझे लेट सिटी एडिशन पढ़ना होता है, जो मतलब रात को जिसकी खबर 1 बजे छपती है, 12-1 बजे जो खबर छपती है उसे कहते हैं लेट सिटी एडिशन अखबार में। और एक होता है देर वाला, मतलब जो 2 दिन बाद खबर आएगी उसमें। तो जैसे ही मैंने वहाँ हिंदुस्तान टाइम देखा, मुझे लगा कि 2 दिन पुरानी खबर है, मैंने कहा इस एरिया में मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड विदिन 15 डेज, 1 पैसा बिना लिए हुए, आई लेफ्ट दैट जॉब एंड केम टू दिल्ली। तो न्यूज़पेपर पढ़ना एक हैबिट होनी चाहिए। और न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाना है, क्या पढ़ा जाए। अब आपको क्राइम न्यूज़ नहीं पढ़ना है, यू हैव टू रीड डेवलपमेंट न्यूज़, दैट न्यूज़ विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा जीएस में है क्या, मतलब जीएस का पूरा कंटेंट आपको मालूम, पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, पेपर 3 में क्या है, पेपर 4 में क्या है, प्रीलिम्स में क्या आता है, ये सब मालूम होगा, तभी आप पेपर पढ़ने लायक और समझने लायक हो। पेपर पढ़ना नहीं, पेपर को समझना है, हाउ टू यूज दैट न्यूज, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो एक अखबार पढ़ना कम से कम सीख लेना चाहिए ऑप्शनल के साथ साथ, और एक आध कोई मॉड्यूल, हिस्ट्री पढ़ लो, सरल है, या पॉलिटी पढ़ लो, या इकोनॉमी पढ़ लो, एक कोई चीज़ दिसंबर तक खत्म कर लो। फिर उसके बाद 15 दिसंबर के बाद स्ट्रेटजीज दैट रिवर्स। केमिस्ट्री भी तुम 5 घंटे पढ़ रहे थे, तब तुम केमिस्ट्री 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो फिर भी डोंट नेग्लेक्ट दैट ऑप्शनल बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। एंड देन रीड जीएस फॉर 7 आवर्स, 6-7 आवर्स जीएस, 8-10 घंटे का शेड्यूल नॉर्मली लोग फुल टाइम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दे कैन अफोर्ड। सो आप 15 दिसंबर से लेकर जब तक फ्री नहीं होता है, आपको 7 घंटे रोज जीएस पढ़ना है, सारा जीएस हो जाएगा, सारा जीएस हो जाएगा। जीएस डज नॉट रिक्वायर मोर देन 1000 आवर्स आप इनपुट, लैटेंट एनर्जी जो चाहिए आपके करेक्टर 1000 आवर्स की चाहिए, बस होगा। सरल एग्जाम में कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल तब है जब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं, स्ट्रेटजी नहीं है। गाइडेंस भी हो जाती है, गाइडेंस भी बहुत लोगों को मिल जाती है बहुत से, लेकिन गाइडेंस को पहले समझो कि गाइडेंस सही है। अब गाइडेंस पे ही डाउट लगा रहे हैं बहुत सारे जो डायलेमा है लोगों के, किधर ने कहा, किन्होंने कहा, तीसरा भी कोई और वीडियो देख लेंगे जाके, तो कंफ्यूजन हो जाता है। स्टेट ऑफ जो कंफ्यूजन है ना, वो बहुत बुरा है। यही है कि फर्म माइंड, जैसे मेरा माइंड हमेशा से फर्म है, जो मुझे करना है मुझे कोई डिविएट नहीं करा सकता। तो मैं देखता हूँ, कंटिन्यूअस चीज़ देखता हूँ टॉपर्स में, कि आपका माइंड फर्म हो, मतलब आपको जो करना है क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला करने की कैपेसिटी आपके पास हो। अगर आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है तो आप इस एग्जाम को कभी पास नहीं करोगे। हम तो रूल है मेरा, अगर मैं आपको गांव चलाने का पास, गांव के लिए वोट नहीं दूंगा गांव प्रधान के लिए, आपको वीडियो बनाना और एसडीएम बनाना और डीएम बनाना तो बड़ी बात है।
अगर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है आपके लिए, तो सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरे का कैसे निर्णय करोगे? तो आपका विवेक जागृत होना चाहिए. You must have your own decision making power. You should not be guided by, yes, advice is very important. Utkarsh has given some advice, Ayush has given some advice, Sir has given some, I have also given some advice. We are only giving you advice. Once you convert that advice, if that advice is logical, rational, satisfying, then it is your action plan. It must be converted into action plan. तो एडवाइस भी मिल जाना, गाइडेंस भी मिल जाना बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात यह है उस एडवाइस को सही मान के वो आपकी कसौटी पे सही है क्या, उस पर इम्प्लीमेंट करना, उसमें उल्टा लटकना होता है. आई यूज द वर्ड उल्टा शीर्षासन करना पड़ता है. 10 घंटे की साधना, ये पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन एक साधना है, एक तपस्या है. अगर आप इस तपस्या को 1 साल कर लेते हो एग्जाम 10 घंटे, लेकिन 10 घंटे कितने कर पाते हैं, कितने के अंदर इतना गट्स है. मैं एक उदाहरण इसमें सोच, थंब रूल का मेरा रूल ये है, अगर आप 3 घंटे 4 घंटे 4 महीने पढ़ते हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के टॉपर होने चाहिए. अगर आप 3-4 घंटे रेगुलर 4 महीने पढ़ते हो तो मेरी नज़र में क्या होने चाहिए, आप जिस भी विश्वविद्यालय से या जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो आपको वहाँ के टॉप 5 में होना ही चाहिए. अगर आप टॉप 5 में नहीं हो, मेरी दृष्टि एकदम स्पष्ट है कि आपने 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी करने का स्टेमिना नहीं है. तो किसी भी टॉपर को यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए, कॉलेज टॉप करने के लिए 4 से 5 घंटे से ज़्यादा की जरूरत नहीं है. अगर आप 4 से 5 घंटे कर रहे हो तो आपका लेवल बहुत कम है, आपका इंट्रिंसिक लेवल जो है बहुत कम है. आप 95% 10th क्लास के नहीं हो, आप बहुत पीछे हो. तो यहाँ पर आपको उतनी एनर्जी, यहाँ पर कंपटीशन आपका टॉपर्स के साथ है, बोर्ड के टॉपर्स के साथ है, यूनिवर्सिटी के टॉपर्स के साथ है. अगर आप नहीं हो तो आपको एनर्जी, वो रिक्वायरमेंट जो होती है उनके अंदर, वो आपको क्रिएट करनी होती है. जो भी टॉपर जो भी एग्जाम को सक्सेसफुल होता है वो उस लेवल अपने अंदर क्रिएट कर लेता है. ये नॉट नेसेसरी क्या बोर्ड के टॉपर हो, लेकिन बोर्ड के टॉपर के लिए तो रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट तब नहीं करी आप, अब कर लो. अब तो आप बहुत ग्रोन अप हो गए हो, 21 साल के हो गए हो. अब समझ लो, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, क्या प्रूफ, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, क्यों अच्छी नहीं? इसलिए अच्छी नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में जब बचपन में थे तब आपने बहुत मेहनत नहीं करी. तो अब तो और ही आसान है. अब तो तुम 21 साल के हो गए हो, अच्छे ड्राइंग भी बना लेते हो, तो आप लिखो ना. अगर तुम 40 पेज लिखना चालू कर दोगे और कॉन्शियस रह जाओगे, तुमने हैंड राइटिंग अच्छी करनी, 100% हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, पहले से ज़्यादा फास्ट फॉलो हो जाती है. अर्थमेटिक नहीं आता था, बहुत लोग मैथ से करते हैं, अर्थमेटिक नहीं आता था. भैया अगर अर्थमेटिक नहीं जानोगे तो आप CCET नहीं पास करोगे तुम. तो प्रैक्टिस कर लो ना. कितने 10-20 चैप्टर हैं यार, 8वीं क्लास के ही तो है, 8वीं क्लास ज़्यादा है, 8वीं 10वीं के होंगे मैक्सिमम. तो 10th तक की मैथ तो हर एक कोई कर सकता है. So you should know what you lack, what is required from examination point of view, and what you lack. If you know what you lack, you can fulfill. बस मुझे और कुछ नहीं करना. खत्म करता सेमिनार को क्या? Thank you, Utkarsh ji, so nice. You came, Ayush ji, both of them. एग्जाम दे रहे हैं. उत्कर्ष जी वाइस करना, मुझे उत्कर्ष जी के पास होने में बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि मेरे एरिया में बड़ी भारी क्राइसिस थी. मैं 2013 से, मतलब मैंने 2007 से बलरामपुर लोकसभा को अपना कार्यक्षेत्र बनाया हुआ. नहीं सर, मैं मिला कई लोगों से, नाम बताया आपका सर, तो सभी लोग सर आपको जानते हैं और वो कहते हैं कि आप कम्युनिकेट करिएगा तो सर मुझे हमसे मालूम मिले और सर को नाम बताइए. तो वो बहुत, मुझे उस एरिया में मतलब गाँव में लोग जानते हैं, सिरसिया ब्लॉक तक से लेकर एकदम लास्ट में. तो उस एरिया में मेरा सोचना क्या है, मैं 2014 में लोकसभा की टिकट मांग रहा था श्रावस्ती से, 24 में भी मांगी मैंने. तो मैं एक बात बता रहा था कि मैं समझता हूँ MLA MP बनने से देश का भला नहीं होता है. MLA MP तो किसी न किसी को बन ही जाना है, और MLA MP कितना होशियार होगा उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड है वी द पीपुल. वी द पीपुल जिसको चूज कर ले वही इलेक्ट हो जाएगा. तो ना उसमें एजुकेशन की जरूरत है, ना किसी चीज़ की जरूरत है, होने की जरूरत भी नहीं है. आप क्वेश्चन मार्क करते रहिए कि भाई आप ग्रेजुएट होना चाहिए, जरूरत ही नहीं है. तो देश में जब हर तरीके के लोग पाए जाते हैं, हर तरीके के लोग चुनाव जीत सकते हैं. लेकिन मेरा सोचना है किसी भी एरिया का विकास तभी होता है जब उस एरिया से IAS, IPS, IFS ऐसे सपने देखने वाले युवा जागृत हो, लोग एग्जाम पास करें. जैसे एक बार पास हुए तो बहुत लोग एग्जाम दे रहे होंगे. इसका इफेक्ट क्या होगा, ये चेन रिएक्शन होगी. अब मुझे 1-2 साल के अंदर देखोगे 1-2 और आ जाएगा कोई. और जब तक 1-2 पास नहीं होते किसी भी एरिया से तो कोई नहीं होता.
बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप जैसे आ रहे हो कहीं किसी रिमोट एरिया से आ रहे हो, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यू आर गोइंग टू बी रोल मॉडल। बाकी किसी एग्जाम के दौरान जरा गूगल के सीईओ बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आप किसी के रोल मॉडल नहीं बनते। यहाँ पर आप रोल मॉडल बनते हो, सोसाइटी के रोल मॉडल बनते हो, फैमिली के रोल मॉडल बनते हो। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नीट से एक्टर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट दिस एग्जामिनेशन इज। 2-3 साल की 3 साल का इसमें मान के चलना चाहिए। बहुत अच्छे हो, सब कुछ करेक्ट फॉलो किया है, भगवान का आपके ऊपर बड़ा आशीर्वाद है, तो 1 साल में पास हो जाओगे। नहीं तो 1 साल में पास होने वाले सिर्फ 13% होते हैं। मैं ये भी संसद बता दूँ, दवा मत हो कि पहले साल में पास होने वाले 14% लोग, 100 में से जो 14 बैठते हैं पहले साल में पास हो जाते हैं। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में पास होने वाले 22% होते हैं। 22% लोग सेकेंड अटेम्प्ट में एग्जाम पाते हैं। स्टैटिस्टिक है यूपीएससी की, जो आप किसी भी यूपीएससी की रिपोर्ट से जाके चेक कर सकते हो। थर्ड अटेम्प्ट में भी लोग पास होते हैं, फोर्थ अटेम्प्ट में भी लोग पास होते हैं, और पास पहले अटेम्प्ट में भी हुआ जा सकता है। सिर्फ डिपेंड करता है इस एग्जाम की जो लैकिंग है, जो रिक्वायरमेंट है, आप उनको कितना बढ़िया से, कितनी जल्दी समझ जाते हो और अपनी कमियों को पूरा कर देते हो। कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, मीडियोकर्स का एग्जाम है। तो कोई IIT जेईई का एग्जाम नहीं जहाँ पर बहुत जीनियस की जरूरत है कि भाई साहब दिमाग अच्छा नहीं होगा। यहाँ दिमाग करें, किताब के क्वेश्चंस हैं, मेहनत का गेम है, प्रैक्टिस का गेम है। मेहनत मतलब प्रैक्टिस है, और एक गुड स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। आई थिंक आप लोग आए हैं, अच्छा हुआ है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अब आप बैठिए, आप खड़े क्यों, आप आराम से बैठिए। ये एक बुका तो आपका था भाई साहब, उत्कर्ष जी। ये सर आपको दिया नहीं लगता जल्दबाजी में, नहीं, बुका देना दे दिया था कि नहीं? सबसे पहले। अच्छा, ठीक है। कल से क्लास प्रारंभ है, कल से 11 बजे 11 बजे से 100 का हिसाब है कि मैं क्लास को 100 बोलता हूँ कि जब क्लास चालू होती है, एक बार once show gets going, it stops only when the course is finished। से नवंबर के आखिरी तक ऑलमोस्ट सारा कोर्स खत्म हो जाता है हर सिचुएशन में। पेपर 1 से चालू होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोर्स चालू होगा। नहीं, गैसीय सिस्टम। अच्छा, गैसेस स्टेट से शुरू होगा। अच्छा, गैसेस स्टेट से शुरू होगा। इतना करेक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर वो 3rd यूनिट 4th यूनिट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, ठीक है जी। पेपर 2 से स्टार्ट होगा, 1 से 1 से 1 यूनिट 1 गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, फेज इक्विलिब्रियम, ये यूनिट। ओके, थैंक यू। आओ तुम लोग उधर से निकल लो, Yes, sir. धीरे से निकलो। तो ये लोग ऑफिस में चलो, उधर से निकल जाओ। एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लैपिंग। ठीक है, ये रख लो।